Yes. Okay. So I hope this syllabus file is visible to everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. I hope you have gone through with the syllabus of others also, as well as production and operations management. This syllabus is divided into 9 units, where in considering comprising both your online and offline session, we have covered all the syllabus till last session which we had, and again we will revise this first. So just I'm telling you that what we are going to cover today. So first will be your revision of all units which are there in the syllabus. We will do some numerical also which are there the part of different units, and then we will cover your previous year question paper as well, that what kind of questions were there, so that you can have a better idea, right? What kind of question may come in your examination. Then we will also cover case study, at least one or two we will try to cover. I will also share that how to solve these kind of case studies, so that in examination, because you know already that your question paper has one compulsory part, है ना? Section A, where we have one compulsory case study, which includes 2 or 4 questions, right? If 4 questions are there, it marks 5 each, and if the 2 questions are there in the case study, it means 10 marks each, because the section A is 20 marks. And then we will also try to cover some MCQs which are there, because I hope आप लोगों का भी आईए स्टार्ट हो चुका है या नहीं अभी? No, sir, No, from sir. 16. ठीक है, No, sir, from from 16 16. onwards. ठीक है, तो 16 onward you have your IE, तो you may have some better idea about that, what kind of question may come, है ना? तो किस तरह से आपने solve करने हैं. You know already that there is no negative marking in your MCQs as well, है ना, in your IE. So attempt your all the questions, whether sometimes maybe that you have some doubt on the question, then do not skip it, okay? Just attempt all the questions, so that the chances are there that you may get the marks on that particular question. So any other thing which you want me to add in this, what I'm going to cover? As I said, first is revision part. Second is your question paper, previous year question paper I will show you. And I will share with you also, right, so that you can have an idea. And then we will cover this case study, and then your MCQs if time remains. So these are the things. And yes, you have one, we can say the question is there from your side. What are some important? In the previous class also, I have shared that what are the important topics, that I will also tell you. Right? But again, not necessary that those questions will come. But yes, we can say the frequently asked question, and probability is there, that they may come also. So in that way, we will discuss. Any other thing which you want me to add in this, what I'm going to cover today? No, sir. So, Okay, ठीक है. So we'll start with the unit number 1 first. Just Yes, let sir. me. So you can see now, first syllabus part, that what are the things which we are going to cover here. Your unit number 1, where we have no numerical in this unit. Second unit, we have one at least here the numerical, which is the facility location. तो जिनको ये नोट करना है कि कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं है, तो वो भी अगर चाहे तो वो नोट डाउन कर सकते हैं ना, और इट विल कम व्हेन वी विल go unit wise unit further. Then in unit 3, again theory part is there. Then unit 4 is there, where we have again theory part, and fifth unit is there, we have some numerical, where we have inventory management, means EOQ related problems are there. Then we also have here that ABC analysis, and which comes under one particular model here that we will discuss. Okay, so here we have EOQ, which comes under the head of inventory management, as well as ABC also. Na? The broader head is inventory management. So that we are going to cover in unit number 5. Then unit 6, these are the topics that aggregate proper production planning. इनके जो शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ये बात आप याद नोट कर लीजिएगा, because in question also you may get these what do you mean by the concept of APP, MPS और MRP. अब MRP के दो मतलब होते हैं ना, आपने एक ये सुना होगा, एक तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम सुनते हैं. तो आप व्हेन यू आर द स्टूडेंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो इस तरह के आपके मन में आना ही नहीं चाहिए ना कि MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, वो मुझे लिख के आना है, right? So if the question is there in the question paper of production and operation, means you have to write
the meaning or full form related to the content only, the syllabus content. So here we have MRP, materials requirement planning, then MPS is master production schedule, SPC is also there, that is स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और इसके अलावा भी जो हम एक्रोनिम यूज करते हैं, जैसे हम ईओक्यू बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय ईओक्यू। वी शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन आवर माइंड एंड वी आर आस्किंग टू द इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन रूम, सर ये क्या टॉपिक है, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं ईओक्यू। अब आप देखोगे सिलेबस में तो कहीं ईओक्यू तो नहीं लिखा हुआ है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिखा हुआ है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बाय डिफॉल्ट जब हमने ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पढ़े थे तो इनके अंदर वो ईओक्यू आता ही है। ठीक है, तो आपको ये चीजों का कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि अगेन यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ सिलेबस, है ना, फॉर श्योर। सो एवरी क्वेश्चन वेदर यू हैव गॉन थ्रू विद इट और नॉट, इट विल बी फ्रॉम सिलेबस ओनली, राइट। So now just sharing the unit number 1 first. Just a second. Sir, lesson number 2 and lesson number 5, there is हाँ, only a numerical. Matlab, there is also a numerical. Also, there is any other chapter other than lesson number 2 no, and 5. preferably you should see there are so many topics. Like if I say na, like we have aggregate production planning. Yeah, master production schedule is also there. We have a statistical process control. But इनके numerical आने के chances कम होते हैं। ठीक है, जिनके Okay, ज्यादा sir. होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बट इफ यू वांट टू कवर देन यू कैन कवर हियर आल्सो, एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इफ यू हैव टाइम, अगेन master production schedule, then how do we create or develop those schedules, then also their questions are there in this इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। जैसे मैंने बोला था आपको, मैंने बताया कि ईओक्यू है, एबीसी है, इसके अलावा भी अगर आप बात करोगे तो वीईडी होता है ना, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, तो वीईडी एनालिसिस है, वो भी न्यूमेरिकल है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं, मल्टी पीरियड, ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल ही हैं बस। ठीक है, लेकिन अगेन आई सेड दैट कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा है, वी आर emphasizing on that part. But in addition to this, Okay, when sir. you cover all the syllabus, if time permits you, then please go through with the questions also. ठीक है, All right, sir. Thank you. yes. So just sharing the unit number 1, just give me a moment. I hope it is visible to everyone. Yes, sir. ठीक है, so some students are there, those who are trying to join from their unofficial ID. If your friends are there, then please ask them to join through their official one, because as I said now always that we are not able to differentiate that who are our students, or some may also create some nuisance sometime, and these kind of things we should try to avoid actually. So that's why we do not allow these participants, those who are trying from the unauthorized ID. Okay, now you can see what we are going to cover in this unit: nature, evolution, and scope of production and operations. Emerging trends means with a reference to the current scenario. What are those topics which comes under the head of operations and they are in trends now, and the most of the organizations are following. Then operations strategy, which is where we will discuss the linkages with competitive strategy and formulation of operation strategy, means how do we formulate the operation strategy. These are the concepts which we are going to cover here. First is historical evolution. It may also see every question is there, and which you should have a we can say the at least idea that what are the things what we need to cover in this. So before moving to this historical part, है ना, first we will cover this जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। मैं बहुत अब शॉर्ट में बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क इन बिटवीन, नो इश्यू। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा अगेन, जब आपकी यूनिट इन बिटवीन का मतलब है कि व्हेन वी आर गोइंग टू वाइंड अप द यूनिट नंबर 1, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन इन बिटवीन द यूनिट, है ना, तो आप उसको नोट कर लीजिए। एंड वंस वी आर थ्रू विद द फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, if you have related question, then ask the question right after the unit we are completing, so that we can cover that.
और अगर अगर आपने भी कुछ न्यूमेरिकल किए हैं या आपने कुछ थ्योरी पढ़ी है, किसी पॉइंट को लेकर डाउट है, तो वो भी आप पूछ लीजिएगा इफ इट फॉल्स विद दैट पर्टिकुलर कंटेंट विच वी आर कवरिंग, है ना, यूनिट वाइज दैट यू कैन आस्क। तो फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड सर्विस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, दीज आर द टू ब्रांचेस। जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पर जो लास्ट लाइन भी है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की, that with the 1970s emerges two distinct changes in our views. So earlier we were considering this operation management as operation management only, है ना, but you know that now the so many technicalities and depth are there when we talk about production, when we talk about services, है ना, हम दोनों को आजकल अलग अलग ही कंसीडर करते हैं। and you know that nowadays those who are the developed countries, they always have the we can say that their GDP is service dominating, means major contribution is contributed from the service sector, not by the manufacturing sector nowadays. जितना आप डेवलप्ड कंट्री की मैंने बात की है आपसे कि सर्विस सेक्टर इज इन मेजोरिटी मे बी अप टू 90%, देयर जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज अप टू 90% ऑल्सो। और जितना आपके जो कंट्रीज हैं, जैसे हम डेवलप की बात करते हैं, फिर डेवलपिंग नेशन आपने सुने होंगे, है ना, जिसमें इंडिया भी आपका डेवलपिंग नेशन में आता है। देन वी हैव अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो। तो जितना ज्यादा ये लेवल नीचे जाता जाएगा, मीन्स डेवलप टू अंडर डेवलप, सॉरी डेवलपिंग, डेवलपिंग टू अंडर डेवलप, यू विल फाइंड दैट दिस सर्विस कंट्रीब्यूशन इज रिड्यूसिंग। ठीक है, तो उनके यहाँ क्या होता है दैट दे हैव द contribution from maybe from the production side, they may have we can say the contribution of agriculture field in the GDPs. Why? Because they are not doing that much we can say the operations activity. Because of that reason they are dependent upon on their natural we can say the asset like agriculture, or maybe they are starting with the production. That's why they have the major contribution from these areas, not from the service sector. जैसे अमेरिका का आप देखेंगे इट इज अराउंड 90%, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया का आप देखेंगे इट इज मोर देन 70%, नॉट 90 एट प्रेजेंट, राइट, बट यस मेजर कंट्रीब्यूशन इज देयर फ्रॉम द इन द जीडीपी बाय द सर्विस सेक्टर। तो ये जो हम दो डिस्टिंक्ट चेंजेस की बात कर रहे हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 1970s, ये क्यों हुआ? बिकॉज दीज एरियाज वर एक्सपेंडिंग अ लॉट। एक्सपेंडिंग इन द सेंस कि पहले केवल आप जानते हैं कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, है ना, जो हमारी नीड होती हैं, लाइक वी नो द रोटी कपड़ा मकान, हम सुनते आए हैं। तो सबसे पहले जब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो दे वर्क ऑन दीज आस्पेक्ट ऑन, है ना। सर्विस तो बहुत दूर दूर तक नहीं आती। सर्विस किसकी क्या सही होगी? मे बी मेडिकल सर्विसेज रिक्वायर्ड, है ना। और जब हम एक स्टार्टिंग पीरियड की बात करेंगे तो एजुकेशन भी उसके काफी टाइम बाद ही आया था, है ना। तो एजुकेशन, फिर आपका मेडिकल, फिर आगे जाएंगे तो हॉस्पिटैलिटी, कंसल्टेंसी, तो और ज्यादा आगे जाके जब आएंगे, जब आपका टाइम जितना ज्यादा इलैप्स होता जा रहा है, then we are having more and more we can say the dimensions in the service sector also. Similarly with the production as well, earlier focus was on the basic necessities. Now you know esteem need are there, social need are there, which the customer want to get satisfied. So to satisfy those need also we need different type of products. अब एक कार है पर आपकी मारुति की नॉर्मल वैगनर भी आती है ना, कार आपकी लैम्बोर्गिनी भी आती है और रोल्स रॉयस भी आती है। उसके अलावा यू नो thousands and thousand brand are there which are there those who are developing or these assembling the car only, है ना, जिसको जो मर्जी चाहिए ले सकता है। तो this much of variation nowadays we have in the we can say the manufacturing sector in one particular product that is car. Similarly ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लीजिए, लैपटॉप जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, या मोबाइल जो आपके हाथ में जैसे आप शायद स्टडी कर रहे हैं, you know that how many brands are there with each and every product, even pen, my shirt, my this phones, earbuds, everyone you can see that you will find number of brands are there at different price they are selling their product, because n number of customer they have different needs. To satisfy those different needs there are the availability of different products, है ना, एट डिफरेंट प्राइस ऑल्सो। यू नो वेरी वेल कि अगर आपने ये ईयरफोन खरीदने जाना है वायरलेस, जैसे अभी मेरे पास है तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यू विल फाइंड 100 रुपए का भी आ जाता है, 100, 200, 250 का, जो आपने देखे होंगे मेट्रो के आसपास, है ना, वो लेके घूमते रहते हैं, जो इतने का भी आ जाता है। वायर वाला 50 का भी मिल जाएगा, है ना। वहां से रेंज स्टार्ट होती है एंड यू नो दैट इट गोज अप टू व्हाट लेवल, है ना। आपके जो एयरपोर्ट्स आते हैं, यू नो दैट प्राइस अराउंड 25,000 30,000, है ना। इससे ऊपर आप जाएंगे तो और भी कंपनीज है, शिनाइजर जैसी कंपनी है, मेनी अदर कंपनीज आर देयर those who are offering these earphones at a very higher end also. So what is this? That huge variation with different price
whatever customer want, what kind of feature the customer want, in combination they can buy the product which is easily available. आप ऑर्डर कीजिए आज, आपके पास अभी 10 मिनट में ही आ जाएगा, या आपके पास कल तक आ जाएगा। इन दैट वे वी हैव द चॉइसेस नाउअडेज। तो ये जितना एक्सपेंशन होता जा रहा है ना, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, इन द फील्ड ऑफ सर्विस। नाउ इफ यू विल काउंट सर्विस, इट इज हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज आर देयर विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट कंपनीज। कुछ नाम जो हम जनरली लेते हैं, है ना, अभी हम बात करें तो एकेडमिक्स की या एजुकेशन की हम बात करते हैं, मेडिकल है आपका, वी हैव कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी कौन सी? लीगल कंसल्टेंसी इज देयर, जॉब कंसल्टेंसी इज देयर, है ना, वी हैव प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स आर देयर एंड मेनी अदर फर्म्स आर देयर, एचआर कंसल्टेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स आर देयर, right? And then we have hospitality industries, we have medical sector, and number of, we can say, the sectors are there which are present at present time period. So these kind of variations lead to divide this operation management into two parts. These are production and operation and service and operation. So first and foremost you should be clear enough about the differentiation. Quickly jaldi cover karenge isko ab hum. Intangibility, you know clearly products are tangible, like this is a product, tangible item. Services are intangible, like education which you are receiving, the kind of language I am using, the kind of content I am using, the way I am speaking, are you able to understand it or not, है ना, how well you are able to understand by way of when we are connected through this online medium, है ना, online channel which is Microsoft Team, है ना, efficiency कितनी है, effectiveness कितनी है, how much content we can cover, how easy it is to get connected through this online channel for education also. तो education जो मैं आपको अभी deliver कर रहा हूँ, how much you are able to understand, am I using simple words or I'm using jargons or technical word which you are not able to understand, है ना, तो ये you will decide again. So this is a service which you can't touch, which you can't we can say the see, but yes, when you are listening to it, you will decide whether it is a good service or bad service. हम लीगल फर्म के पास जाते हैं, लॉयर्स होते हैं हमारे पास, है ना, तो लॉयर के जब हम हायर करते हैं किसी केस के लिए, सपोज सम इंसिडेंट्स आर देयर, है ना, एट योर प्लेस और एट एनी अदर प्लेस, व्हेन दे हायर द लॉयर, देन वेदर दैट लॉयर इज डीलिंग विद द केस जुडिशियसली और नॉट, या वो उसको केवल स्ट्रेच ही करता जा रहा है, यू विल कम टू नो। होटल में जाते हैं, यू नो, है ना, कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है व्हेन वी स्पेंड मनी, if we are spending 1,000 per night to a hospital, to one this hotel, or we are spending a lakh for one night, differences, है ना, और क्या वो justifiable है कॉस्ट या नहीं है जो हमने पे की, you can easily experience only, right? So this is intangibility. Inseparability means separate होगा या नहीं होगा, product can be separated from its producer, right? जैसे ये पेन है तो इसको इसी साइट पर बनाया गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर, बट आई हैव परचेज्ड दिस पेन फ्रॉम वन लोकल शॉप। बट इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर क्लास, तो आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इस क्लास के अंदर आना ही पड़ेगा, और जो आज नहीं आ पा रहे हैं उनको भी जब बाद में क्लास एक्सेस करेंगे तो उनको भी यूट्यूब पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करना ही पड़ेगा, देन ओनली दे कैन गेट द सर्विसेज, अदरवाइज नॉट। तो सम लिंकेजेस आर रिक्वायर्ड व्हेन यू रिसीव द सर्विसेज। ना, हेयर सैलून का एग्जांपल ले लीजिए, कि आपको सर्विस चाहिए होती है तो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना ही पड़ता है या उसको घर बुलाना पड़ता है, इफ सर्विसेज आर लाइक दैट। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि इफ यू हैव पेड यू विल गेट सर्विसेज, है ना, विदाउट एनी सर्विस प्रोवाइडर। यू कैन नॉट सेपरेट सर्विस फ्रॉम इट्स प्रोवाइडर्स। Variability, products may be products, we can say that this products may or may not be variable, and we can say the products are identical to each other, ठीक है, हम यही बोलेंगे अभी कि products are similar, they are not variable at all. Why I am saying कि अगर इस पेन का यही मॉडल आप लेने जाएंगे तो आप एक खरीदिए, 100 खरीदिए, 1000 खरीदिए, है ना, आपको सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला, ठीक है। इन दैट सेंस आई एम सेइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरिएबल, दे आर होमोजेनियस, व्हाइल सर्विसेज आर वेरिएबल। आपने मेरे इतने सारे सेशन पहले लिए हैं, है ना, ऑफलाइन, क्योंकि हम सर्विस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग दिस एग्जांपल व्हिच इज वी बोथ ऑफ अस नो, है ना, योर स्टूडेंट एज वेल एज मी, है ना, एज अ टीचर। तो जितने भी सेशन आपने लिए हैं वो अच्छे थे, खराब थे, है ना, कभी बहुत अच्छे रहे होंगे, कभी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कभी बहुत कम भी पढ़ा होगा, कभी मैं नहीं भी आया हूँगा, ये भी रहा होगा, है ना, कि अच्छा सर का लेक्चर नहीं है। So these are the things which we can say that variations are always there in the services. We can take the example of railway flights. When you fly, then every time you will have different experience because of their timing, your
nearby passengers, है ना, in that way, and delays are there or not, how well your you are experiencing while you travel from one place to the another one. You will find every time a different experience, with the railway or bus or flight. Perishability, services are always perishable, but products may or may not be perishable. जैसे अगर ये एग्जांपल मेरे पास माउस है तो इट विल वर्क फॉर नंबर ऑफ इयर्स. लैपटॉप है, मे बी इट विल रन फॉर 8 to 10 years. पेरिशेबल नहीं है ना. बट यस, इफ आई बाय मिल्क, तो अगर वो मैंने 1-2 दिन में अगर कंज्यूम नहीं किया वो खराब हो जाएगा. इफ आई बाय दीज एग्स और इफ आई बाय सम फ्रेश वेजिटेबल, तो वो कुछ दिनों के अंदर वो पेरिश हो जाएगी. इसलिए products are variable, products may or may not be variable, while services are always perishable की हम बात कर रहे हैं. Products may or may not be perishable, while services are always perishable. Why I'm saying so? Because जैसे एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं, कि हम अगर रेलवे से जा रहे हैं, तो रेलवे से जब आप जाते हैं, जब सपोज आपने टिकट आपने बुक की हुई है दिल्ली टू आगरा, है ना, जैसे ही आप आगरा पहुंचेंगे, योर सर्विसेज आर ओवर देन एंड देयर ओनली. मेडिकल मेडिकल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑपरेशन का, कि आपने पैसे पे किए 10 लाख किसी के ऑपरेशन के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए. जैसे वो हार्ट सर्जरी होगी, आपकी सर्विस वहीं ओवर हो जाती है. इफ यू वांट सर्विस अगेन, यू हैव टू पे अगेन. इन दैट वे सर्विसेज आर ऑलवेज पेरिशेबल. Customer participation is not at all required at the time of manufacturing the product. For example, this is the water bottle. इसकी जहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है, क्या वहां कस्टमर का प्रेजेंट होना जरूरी था? नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. आपने तो लोकल शॉप पे गए, पानी की बोतल खरीदी और आपने कंज्यूम कर ली, right? So customer participation is not at all required in case of manufacturing the product, but yes, in case of services, it is 100% required. चाहे फिर वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे आपको मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए हो, चाहे आपको अपने पैथोलॉजी पे जाके टेस्ट कराने हो, चाहे आपको लीगल सर्विस चाहिए हो, आपका होना जरूरी है उस सर्विस को लेने के लिए, है ना. आपने हेयर सैलून पर बाल कटाने हो, हेयर कट कराना हो, देन ऑल्सो द कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी while receiving the services. Ownership, in case of products, ownership is possible, and transfer of ownership is also possible, right? जैसे मैंने कार खरीदी, मेरे नाम पर आरसी है उसकी, मैंने यूज किया उसको 5-7 साल, मैंने उसको रीसेल भी कर दिया और मैंने आरसी ट्रांसफर कर दी किसी और के नाम पे. नाउ दैट पर्सन विल बी द ओनर. इन दैट वे सर्विसेज, products, we can have the ownership of the product, but in case of services we do not have ownership. सर्विस को हम केवल एक टाइमिंग के लिए परचेस करते हैं. वंस इट इज ओवर, इट डजंट मीन कि सर्विस पर आपकी ओनरशिप हो जाती है. जैसे लीगल सर्विस की मैंने बात की कि आपने लॉयर को पे किए, अब आप लॉयर को बोल रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं, है ना, तो वो आपके साथ घूमने क्यों जाएगा? आपने उसकी लीगल सर्विस के लिए पे किया हुआ है, देन ही विल गिव यू द लीगल सर्विस ओनली. हेयर सैलून पे आप जाते हैं तो उसने आपने केवल उसका जो बार्बर है या जो उनके स्टाइलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स है ना, उनको केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे. यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट आउटलेट और दोज पीपल दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर. इन दैट केस वी कैन से सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड बाय द कस्टमर, देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज आल्सो नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सर्विसेज. द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट. वी विल कवर वन डेफिनेशन हियर. और मैंने ये यहाँ जो ईमेल आईडी लिखी है वो इसलिए लिखी थी कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं अर्लियर, but now you know that I have already shared these notes through chat box. I hope it is accessible by each and everyone. If someone is still left, I will again share, or you can also share in the chat box, which slide I have already shared with you. I have shared slides, I have shared book, right? So these things should be there with each and everyone, those who are present in the class or the other student also. तो हियर व्हाट डू वी मीन बाय दिस ऑपरेशन मैनेजमेंट? इट इज ए प्रोसेस. अब देखिए, मैंने ये भी कहा था कि ये डेफिनेशन अपने आप में इट इज अ वेरी लॉन्ग डेफिनेशन. तो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोसेस. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्शन प्रोसेस वी विल कवर लेटर, है ना, अभी आपका नेक्स्ट यूनिट में आएगा. इट इज ए एज द प्रोसेस वेयर बाय रिसोर्सेज पता है ना कौन कौन से होते हैं? वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दिस एंटरप्राइज. वी कंबाइन दीज रिसोर्सेज फ्लोइंग विद इन ए डिफाइंड सिस्टम. सिस्टम क्या होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में? दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी विल डिस्कस. तो देयर इज अ सिस्टम. तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, दे विल फ्लो इन सच अ वे इन अ डिफाइंड सिस्टम सो दैट इट कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय ए कंट्रोल्ड मैनर.
यानी क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, आपके जो मटेरियल होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मे बी दे विल गेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, है ना। तो इन दैट वे, और एक कंट्रोल्ड वे में होंगे कि कितना उसमें करेक्शन होना चाहिए, कितना हमें कट करना है, कितना हमें मटेरियल ऐड करना है, दिस विल बी ऑलरेडी स्पेसिफाइड। इससे होगा क्या, कंबाइनिंग से और इंटीग्रेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, यू विल ऐड सम वैल्यू। यानी जैसा मटेरियल पहले था, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक टेक्सटाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉटन। आप जानते हैं ना कि कपड़ा जो होता है कॉटन की, जब हम बात करते हैं, कॉटन शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कॉटन शर्ट के लिए सबसे पहले तो कॉटन होना चाहिए ना, कॉटन से बनेगा थ्रेड। तो क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ ना, कि आपने कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, देन थ्रेड टू कपड़ा आपका बन जाएगा, पूरा क्लॉथ जैसे हम बोलते हैं, वो उस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो फर्दर वैल्यू एडिशन। और उस कपड़े के बनने के बाद व्हाट वी विल डू सम कटिंग, स्टिचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स सो दैट इट कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज शर्ट। तो इन ए कंट्रोल्ड मैनर टू एड वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसीज कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट। यहाँ पॉलिसी से मतलब क्या है, कि वेदर द मैनेजमेंट पॉलिसीज वो किस तरह की हैं, वो क्वांटिटी सेंट्रिक है, कि हमें क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं करना है, हमें क्वांटिटी बनानी है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है। दूसरा, कि वो क्वालिटी कॉन्शियस है, कि हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट यस वी शुड हैव द क्वालिटी इन आवर प्रोडक्ट, मे बी दे आर सेलिंग इट एट a higher price, or they may have the combination of both. Quality is also required up to some extent, and quantity we should have so that we can supply adequate quantity into the market. So here a process where all the resources, what we are doing, they are flowing within a defined system, यानी एक पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें वो फ्लो करते हैं स्टेप 1 to 2, वर्क स्टेशन 1 से 2 पर, 3 पर, 4 पर, और लास्ट स्टेप तक वो जाएगा। what will happen, some material will get combined, integrate and transform, and then what will happen, some value addition will take place which will be there at the end in the form of a final product। और वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैंने बताया आपको, क्वालिटी क्वांटिटी कॉन्शियस, इन दैट वे दिस इज कॉल्ड होल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट ए सिस्टम पर्सपेक्टिव। तो यू कैन सी दैट, अब मैंने आपसे जो बात की थी अभी कि व्हाट डू वी मीन बाय ये सिस्टम, जो इस डेफिनेशन में भी एक वर्ड आया था, फ्लोइंग विद इन ए डिफाइंड सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम। अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम रिवीजन क्लास की बात कर रहे हैं, तो आई विल नॉट आस्क यू मच क्वेश्चन, आई विल बी जस्ट ब्रीफिंग दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द previous all the sessions of operations management in a summarized scope of operations management means what are the different things which comes under the head of operation management, what are the boundaries of operation management, that means that is the meaning of this scope of operations management। so what we cover, और ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना एक एक पॉइंट, these all are the separate chapter also, right। first is design of product and services, this is also there in your syllabus, I think third or fourth unit is there, fourth unit where we will cover this, your product shape size, है ना, सर्विस ब्लू प्रिंटिंग, सर्विस के लिए क्या आपका वी कैन से क्या पाथ होगा जिसके थ्रू हम कस्टमर को सर्विस डिलीवर करेंगे। देन मैनेजिंग द क्वालिटी, तो क्वालिटी मैनेजमेंट इज आल्सो योर यूनिट, आई थिंक 7 और 8, देयर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। स्ट्रेटजी प्रोसेस, तो स्ट्रेटजी तो आपका इसी चैप्टर में ही है, इसी यूनिट में है, दैट वी विल कवर लेटर आफ्टर कपल ऑफ स्लाइड्स, है ना। मैं भी इसके बारे में मीनिंग में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दिस। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मीन्स कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन वी नीड सम लोकेशन, है ना। किसी भी अगर प्रोडक्ट को आप बनाते हैं उसके लिए तो लोकेशन चाहिए ना। पॉसिबल है कि सर्विस जब आप डिलीवर करते हैं या सर्विस में अगर आप हैं, तो हो सकता है कि बिना लोकेशन के भी काम चल जाए, है ना, आपको बहुत ज्यादा स्पेस ना चाहिए हो, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यू नीड सम स्पेस। तो हाउ टू फाइनलाइज और हाउ टू फिगर आउट proper adequate or appropriate location for our manufacturing unit, what are the different points that we will cover। layout strategy means what, when you buy a plant to manufacture something, what will be the design of that particular plant in our location, at our location। तो लेआउट किस तरह का होना चाहिए, उसको अगर हमने ठीक से नहीं बनाया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के लेआउट होते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। Human resource, we know that the human resources are required at different level, whether it is a top level, middle level or lower level of management। We need direct manpower, which is direct labor, we need indirect labor also, indirect labor we call them employees as well। So this human resource is also required to facilitate
this entire operations management of production. Supply chain management. Supply chain management, we know that the different nodes are there. We can say that in your entire production process. Different nodes means when you assume any, we can say the product manufacturing. जैसे मैं अगर नाम लूं, कार का नाम ले लेते हैं, है ना, कार बनानी है, तो कार के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला सप्लायर कौन होगा? द वन हु इज मैन्युफैक्चरिंग द आयरन, दोज हु आर एक्सट्रैक्टिंग द आयरन, है ना। तो जो आयरन कंपनीज हैं या स्टील कंपनीज हैं, सबसे पहले वो आपके रॉ मटेरियल डेवलपर है, रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको वो आयरन शीट या स्टील शीट बना के वो उसको आगे सेल करते हैं। फिर आयरन शीट वाले से वो कहाँ जाता है? इट विल गो टू द कंपोनेंट डेवलपर, यानी आपकी कार में जो लगेंगे, स्टीयरिंग लगेगा, आपकी कार में जो सीट लगेंगी, आपकी कार में जो व्हील लगेंगे, आपकी कार में जो बाकी इंजन लगेगा, बॉडी होगी, है ना, ये सब तो किससे बनेगा? मेटल से बनेगा। तो उस मेटल को आप ट्रांसफॉर्म करवाते हैं और इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट, वी कैन से द कंपोनेंट डेवलपर, दोज हु आर देयर। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो what we are discussing supply chain, that we have this आयरन से हमने क्या बनाया? शीट से हम गए कहाँ पर? कंपोनेंट डेवलपर हैज डेवलप्ड सम कंपोनेंट, एंड देन आफ्टर so many component developed by the different or respective component developer, then those component developer will supply their component to the assembly line, है ना। तो जो टाटा कंपनी है, मारुति की है, या जो और अदर कंपनी है, एमजी है, किया है, what they will do, they will combine, they will assemble all those component and the final product will be ready there, which is your car, है ना, in the form of car it will get transformed, right? So सप्लाई चेन मीन्स, और जब वो कार बन जाएगी तो कार कहाँ जाएगी? वहां से मे बी इट विल गो टू द वेयर हाउस विच इज नियर बाय टू द दिस असेंबली लाइन, एंड देन इट विल गेट डिस्पैच टू द रेस्पेक्टिव डीलर्स, और रेस्पेक्टिव डीलर के पास जाने के बाद कस्टमर के पास उस कार को हम आगे सेल करते हैं। तो यू कैन सी हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन दिस चेन, राइट। तो ये सप्लाई चेन को मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स हाउ मच इन्वेंट्री हैज टू बी देयर एट आवर लोकेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं हो कि इन्वेंट्री ज्यादा हो, कम हो, तो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस, दिस इज ऑल्सो सेपरेट यूनिट। शेड्यूलिंग मीन्स कब हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर यूनिट लेटर। देन नॉट दिस यूनिट, द अदर यूनिट, देन वी विल डिस्कस। देन मेंटेनेंस मीन्स जो आपके पास मशीन है, आपके पास कंपोनेंट हैं, टूल्स हैं, they should remain in working condition, right, fully functional condition. For that purpose we need to run the proper maintenance program, so that we will also cover in this operations management. This is operations strategy, so this is first, we can say the which is there in the scope also, we will cover it over there. First go through with it, then I will discuss what does it mean. एक बार आप पढ़ भी लीजिए साथ साथ, जिससे आपको क्लियर रहे ना। So I hope you have gone through with this meaning, that what do we mean by operations strategy. So you can see that it is about long-term goals and mission of that manufacturing unit, है ना। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट दे वुड लाइक टू अचीव इन अ लॉन्ग रन, तो जो आपका विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है,
what are your goals, है ना, all these things comes under the head of operations strategy. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका अगर एक हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं अंडर द ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो व्हाट वुड बी द अल्टीमेट goals or the vision that they can produce maximum unit of their product so that they can fulfill the need of the customer for a long period of time. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग पीरियड जब हम बोल रहे हैं, ईयर वाइज आपको अपने विजन को या मिशन को बोलेंगे, क्योंकि विजन आप जानते हैं कि फिलोसफी होती है कि मिशन को आपको अब पार्ट्स में डिवाइडेड भी करना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा कि आपने 10 ईयर का सोचा हुआ है विजन हमारा, ये हमारी फिलोसफी है, इसको अचीव करने के लिए मिशन हमारा ये है, तो ईयर ऑन ईयर हाउ मच ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना, हाउ मच डिफरेंट प्रोडक्ट वी विल मैन्युफैक्चर एट आवर प्रोडक्शन साइट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फाइनलाइज, right? So this comes under the head of operations strategy. Now you can see what are the different things which comes under the head of operation strategy. Product management, मैनेजिंग द प्रोडक्ट, यानी अगर आप मोबाइल बनाते हैं तो जो पर्टिकुलर मोबाइल का वर्जन अभी आप मार्केट में सेल कर रहे हैं वो कितने साल तक आप सेल करेंगे, उसमें जब हम नए फीचर ऐड करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जैसा आप देखते हैं ना सैमसंग एस कहाँ से चलता आ रहा है ना, S1 2 3 4 S10 S11 S20 25 26 S26 तक पहुंच गए ना, अब 27 भी आ जाएगा। So this is the different upgradation you are putting into the mobile phone and you are selling it again to the customer with the enhanced features. प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना, कब हमें ये चेंजेस करने हैं, कितने चेंजेस करने हैं, कितने साल तक वो चेंजेस सेम रहेंगे। देन सप्लाई चेन, अब उस मोबाइल फोन के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपने कुछ अपग्रेड किए हैं फीचर्स तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, हु विल बी द न्यू सप्लायर, कैन वी गेट समथिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सप्लायर और नॉट। सप्लाई चेन भी हमें पूरी आपको स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इस तरह से स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी कि इन द मिनिमम टाइम पीरियड यू कैन गेट मटेरियल एट योर प्लेस so that you can manufacture them on timely and you can dispatch it to the customer and it should be delivered to the customer on timely basis. तो सप्लाई चेन को भी इफेक्टिव करना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, तो मोबाइल फोन जो आप बना रहे हैं उसके लिए जो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है क्या वो प्रॉपरली आपके पास अवेलेबल है या नहीं है ना, या कितनी इन्वेंट्री और चाहिए होगी। दीज थिंग्स विल कम अंडर द हेड ऑफ इन्वेंट्री। देन फोरकास्टिंग ऑल्सो, फोरकास्टिंग मीन्स ये जो सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन में, चाहे वो कंपोनेंट डेवलपर है, चाहे वो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, तो हमें कब कितना चेंज लेके आना है, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी विल डू द फोरकास्टिंग वेल इन एडवांस। ठीक है, फोरकास्टिंग भी हमें हर पार्ट पे करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री अगर आज हम इतनी परचेज कर रहे हैं, आगे जब हमारा टारगेट बढ़ेगा तो हमें कितनी इन्वेंट्री ज्यादा परचेज करनी पड़ेगी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी विल डू अंडर द हेड ऑफ फोरकास्टिंग। देन शेड्यूलिंग मीन्स जब हमारे पास पता है कि जैसे मैंने भी एक मोबाइल की बात की, अब आप जानते हैं कि सैमसंग जैसी कंपनी, वन प्लस, वीवो, एनी कंपनी यू कैन नेम, ऐसा तो नहीं है कि एक ही मोबाइल बनाते हैं, दे हैव डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट मॉडल्स एट डिफरेंट प्राइस दे आर सेलिंग। तो कब किस पर्टिकुलर मोबाइल का हम प्रोडक्शन करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, ये हमें पहले ही बना लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। द नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, कि जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, व्हाट विल बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड, राइट। तो दिस कम्स अंडर द हेड ऑफ क्वालिटी। तो ये भी लॉन्ग टर्म आपके ऑब्जेक्टिव, ये हम कह सकते हैं कि ये आपको इसकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज आज जो हम स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं क्या वही सेम आगे कितने सालों तक रहने वाले हैं, इसमें अगर अपग्रेडेशन होगा तो कब होगा, ये सारी चीजें आपको वेल इन एडवांस प्लान करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रेटजी, बिकॉज दिस डिसीजन विल रिमेन इफेक्टिव फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। एंड फैसिलिटीज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फैसिलिटीज मीन्स आपका प्रोडक्शन प्लांट आ गया, वेयर हाउस आ गए, स्टोरेज आ गई, परचेज आ गई, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उनके लिए भी क्या उनकी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी आगे बढ़ानी होगी, हर साल कितनी कैपेसिटी में हमें एनहांस करना पड़ेगा, फॉर दैट पर्पज व्हाट वी नीड टू डू, है ना, ये सारी चीजों को आपको एज ए ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द हेड ऑफ स्ट्रेटजी। फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेशन स्ट्रेटजी कंसर्न्स, अब सर्विस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की तो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में बात कर ली है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या है, कंसर्निंग फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड सर्विस दैट मैचेस द कंपनीज गोल एंड मिशन। तो इसको लेकर भी हमको लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स इफ वी
फॉर्मुलेट दीज स्ट्रेटजीज। तो हम इसको अब शॉर्ट में हम जरा कवर करते हैं, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी लेस टाइम विच इज 4 hours इंक्लूडिंग 1 hour break. So benefits of having an operation strategy: employee will remain efficient, and resource management means properly whatever resources are available within the company, you can optimally utilize those resources. एंड थर्ड इज डिपार्टमेंट कॉपरेशन, क्योंकि जब आपके पास एक प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आप ये भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटीज होंगी, व्हाट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, विद द अथॉरिटी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, व्हाट विल बी देयर इंडिविजुअल गोल्स, व्हाट विल बी द टीम गोल्स, ग्रुप गोल्स, एवरीथिंग यू कैन डिवाइड, है ना. So in that way the proper allocation of work will take place, and when it department will work, it cannot work in isolation, है ना. दे शुड रिमेन इंटीग्रेटेड विद द अदर एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ऑल्सो. जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सपोज अगर परचेज से बात ही ना करे तो क्या होगा. जब मटेरियल हमें चाहिए, मटेरियल उसके पास नहीं आएगा, तो कौन मटेरियल परचेज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट करेगा ना. मशीन है वो खराब, वो ऑब्सोल्यूट, वो घिसती जा रही है, घिसती जा रही है, वहां पर ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन प्रोवाइड करेगा, हु विल बाय. बाय का काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का. और ये चीजें, ये जो सारे मटेरियल वो आएंगे कहाँ से, आएंगे स्टोर से, तो स्टोर से भी कनेक्ट रहना पड़ेगा, है ना. स्टोर से आएंगे तो स्टोर में क्या होगा, स्टोरेज होगी, वहां से आपको ये चीजें अवेल कराई जाएंगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको इंटीग्रेटेड रहना पड़ेगा, कॉपरेट आपको करना पड़ेगा, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन अ स्मूदर वे. ठीक है, और वो मिनिमम टाइम पीरियड में आपके पास वो चीजें अवेलेबल हो जाए जो आपको चाहिए. Now types of operation strategy, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, we will not go in more detail. That type of strategies are like we have core competency strategies, means company work on one particular product, है ना. In that way we call, ये एक प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है, क्वालिटी वाइज भी हो सकती है ना. तो on one particular core competency when you work and you try to improve it again and again with the number of years passing on, that is called core competency strategy. Corporate strategy, corporate strategy means in a one particular corporate group, what kind of marketing, what kind of financing, what kind of HR policies you are following. So those strategy you can follow as in, we can say, the association with the other corporate houses which they are following. Competitive strategy means like मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा मैन्युफैक्चरिंग हमारा कंप्यूटर करेगा सेम वैसे ही हम करेंगे, जैसा प्राइस हमारा कंप्यूटर चार्ज करेगा वैसा हम चार्ज करेंगे. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी. प्रोडक्ट और सर्विस स्ट्रेटजी, what does it mean? Just give me a moment, a second. Yes, so just a minute. Competitive strategy we have discussed. Product or service strategy means company is, we can say that when the company becomes market leader towards their product or services because of their product and services. ऐसा अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, मोबाइल में मार्केट लीडर कौन है, यू नो ऑलरेडी, द एप्पल कंपनी, द आईफोन विच आर देयर. इफ वी टॉक अबाउट इन कार कंपनीज, हु आर द मार्केट लीडर, टेल मी, जल्दी बताइए कौन है जल्दी से. मारुति, इन कार Tata. मैन्युफैक्चरिंग, टाटा, हुंडई, हुंडई, टाटा, टाटा. टाटा तो बहुत पीछे हो गई, टाटा का तो नंबर 4 पहुंच गया है. होंडा भी पीछे है, ठीक है. मारुति है जो आपकी सबसे ज्यादा कार सेल करती है आज भी. तो वी कैन से दे आर द मार्केट, है ना, मार्केट लीडर्स. और सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं, जैसे अगर हम किसी होटल का नाम लेते हैं, तो वी नो हु आर द लेगेसी होटल्स, है ना, ताज होटल, मैरियट एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नेम्स आर देयर. इफ वी टॉक अबाउट दिस व्हाट नेम, लाइक प्लेसमेंट एजेंसी की जब हम बात करते हैं, तो प्लेसमेंट एजेंसी में आप देखेंगे कि जो आपके पहले वेबसाइट हुआ करते थे, naukri.com, मॉन्स्टर, टाइम जॉब, है ना, ये मार्केट लीडर हुआ करते थे. तो व्हेन द कंपनी आर नोन फॉर देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट, or they are just, why they are known for these product and services, because they keep on working on their enhancement, advancement, you know, upgradation. If you are following these kind of a strategy, that comes under the head of product or service strategy, because you are more inclined towards developing your product and service upwards in such a way so that you can get more number of customers or
from the different segments all the time. Then we have customer driven strategy, means company will not manufacture according to their expectation. Company will follow what customer says, है ना? तो कस्टमर जैसा बोलेंगे, जैसे उनको फीचर चाहिए, फीडबैक के बेसिस पर when they produce, then we say that the company is following the customer driven strategies. वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, फिर मार्केटिंग, फाइन, आपके एचआर, आपके प्रोडक्शन, एनीवेयर, ठीक है? तो these are the strategies if the company is following based on the customer insights, that is called customer driven strategies. This is emerging trends. Anything from anyone? प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, कुछ लोगों की अभी आवाज आ रही है। Excuse me, sir. यस, Sir, can you please explain corporate strategies? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैंने बोला, जैसे आईटी सेक्टर आपका है ना, आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो इन सेक्टर की जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो होती है, व्हेन यू फॉलो दोज स्ट्रेटजीज ओनली, नॉट कंपेयरिंग विद योर कॉम्पिटिटर्स, नॉट फोकसिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टील में आप क्या फोकस करेंगे, सोचिए ना, प्रोडक्ट वाइज, वो तो आपको स्टील एक्सट्रैक्ट ही करना है ना, वो तो आपको प्लेट्स ही बनानी है उसकी। In that way, when you follow some common guideline which are applicable in that particular corporate group, if you are following those things for improving your production and all the things, that comes under the head of corporate strategies. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, मैंने आपसे बोला ना, क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए, we will discuss these question right after the unit, है ना, that will be better. चलिए नेक्स्ट आते हैं, this is emerging trends me, in sir. operations. Yes. The students are waiting in the lobby. Could you please let them in? No, sorry, मैंने अभी आपको बताया ना कि there are some student those who try from their unauthorized email ID, we cannot allow them, है ना, क्योंकि sir. आप, हमें नहीं पता ना कि वो स्टूडेंट है भी या नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। देन कई बार क्योस भी हो जाता है कि वो चैट में कुछ भी लिखते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो दीज थिंग्स वी डू नॉट वांट, है ना, वी अवॉइड दीज Okay. थिंग्स, Okay, sir. राइट? जस्ट आस्क देम इफ दे आर योर फ्रेंड्स, जस्ट कम्युनिकेट टू देम कि उनकी जो ऑफिशियल आईडी है उससे लॉगिन करें, उनको फिर परमिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है? हाँ, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना, तो आपको कहाँ रिक्वायरमेंट थी किसी की परमिशन की, आप सीधे इसमें आ गए, आप अंदर आ गए ना, इन दैट वे आई एम Yes, sir. Thank you. ठीक है? Yes. So these are the emerging trends, and again we can see the frequently asked question. One of the frequently asked question that what are the current trends in the field of operations? So these are some of them. और one more thing I will say कि हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं ना कि स्ट्रेटेजी, जैसे हमने 5 डिस्कस किए हैं, तो जरूरी नहीं है 5 ही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। बेनिफिट मैंने अगर 3 यहाँ बताए हैं, तो जरूरी नहीं कि 3 ही बेनिफिट हो जाते हैं, ये तो आप सबको पता है ना। स्लाइड इज जस्ट एन इंडिकेटर, है ना, हम इसमें सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देयर मे बी एन नंबर ऑफ बेनिफिट फॉर हैविंग दीज ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी, बट वी कैन कवर ओनली फ्यू, है ना, ये आपको वो चीजें पता रहनी चाहिए। अगेन मैंने केवल एक एज ए रिमाइंडर बताया कि हमें ये ना लगे कि नहीं सर वहां तो ये भी स्ट्रेटेजी है, वो हम पढ़े ना पढ़े, बिल्कुल पढ़िए। अगर वो स्ट्रेटेजी हेड में आते हैं, तो देयर मे बी एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज, आउट ऑफ देम वी हैव कवर्ड ओनली 5, क्लियर? Similarly, in this point I am saying, which is emerging trends in operations, that we are not limited to these points only. There may be 10, 100 or 500 points, है ना, which are currently emerging, because you know already how vast is the field of operations. कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, कितने सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। एक आजकल जो पोंछा हम देखते हैं ना घर में, वाइपर आता है, उससे लेके कार, एरोप्लेन और हवाई जहाज, आपका शिप्स, यहाँ तक प्रोडक्ट है आपके। Based on different fields, different industry sectors, we may have different emerging trends, right? Out of them, some of them we are covering over there, and which are, we can say, the majorly implemented in the different sectors. First is investment in the employee experience. Why do we need to invest in the employee experience? Because if you will not invest in employee experience, you will not be able to retain skilled employees. अब ये एम्प्लॉय एक्सपीरियंस क्या होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो जब वो आपकी कंपनी में वो जब इन होता है, मतलब जब आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जब उसने ऑफर लेटर साइन कर दिया है ना, ही इज ऑन जॉब, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे टिल द एंड ही सस्टेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक्सपीरियंस कंपनी में कैसा रहता है, उसकी सैलरी पैकेज कैसी है, जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी है या नहीं। सैलरी सबसे मेन होती है ना स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने सैलरी से बात स्टार्ट की है। देन वर्क प्लेस कैसी है, वर्क प्लेस पर लोगों की डाइवर्सिटी कैसी है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस कैसी है,
है ना? आपके जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते हैं? आपका जो करियर पाथ है, जो करियर ग्रोथ है, क्या वो टाइमली होती है, नहीं होती है? ऑल दीज़ थिंग्स कम्स अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉयी एक्सपीरियंस। कई बार कंपनी, आपने देखा होगा कि कंपनी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है ना? आपको अकोमोडेशन भी देती है, फूड भी देती है, लॉजिंग भी देती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देती है, कैब फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। कंपनी ये सब दे रही है, नहीं दे रही है? Again, it depends sector to sector and industry to industry. That's I'm not commenting. But these all things comes under the head of employee experience. राइट? तो ये जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेगी, दोज़ कम वी कैन से द मोर प्रोबेबिलिटी दैट दोज़ कंपनी में हैव द स्किल्ड एम्प्लॉयी। क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयी के पास, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि हमारे कंट्री में जॉब की कमी नहीं है कभी भी, याद रखिएगा। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम? दैट इज़ द स्किल, कि हमारे पास स्किल नहीं है। अगर हम बोले कि बीकॉम का अगर कोई यूजी ग्रेजुएट है, क्या स्किल उसके पास होने चाहिए? हम ये देखते हैं कि उसके पास उतने स्किल नहीं होते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, but yes, some of them are there which are holding the degree, but they do not know about that particular skill. Similarly, masters in MTech, आपने लीजिए, BTech, CA नहीं मैं बोलूंगा फिर भी, but other degrees है ना, which are common course, you will find that the skills are missing. जो स्किल्ड लोग होते हैं उनके पास जॉब की कमी नहीं है, तो जहां उनको अच्छा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां उनको पैकेज अच्छा मिलेगा, जहां उनको करियर ग्रोथ अच्छी होगी, जहां उनको इंसेंटिव अच्छे होंगे, बोनसेस अच्छे होंगे, है ना, फेयर पॉलिसीज होंगी, जहां ये सारी चीजें होंगी वहीं पर आपका एम्प्लॉय जाएगा। इसलिए इफ यू वांट टू होल्ड गुड क्वालिटी एम्प्लॉइज, स्किल्ड एम्प्लॉइज, देन यू हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट इज दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टूल। तो मोबाइल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के टूल्स जो अब आजकल हम यूज करने लगे हैं, इंटीग्रेट हमने कर लिए हैं अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, यू नो, है ना, कि मोस्ट कॉमन टूल इज व्हाट्सएप नाउअडेज, देन वी हैव दिस ईमेल वर देयर, है ना। लेकिन मोबाइल की जब हम बात करते हैं तो आपका सोशल मीडिया आ गया, आपका ये एक्स आ गया, आपके फेसबुक, इंस्टा, आपके व्हाट्सएप, ईमेल, इन सबको हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इससे आप जो पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ करता था इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, कहीं इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, कहीं नहीं पहुंचती थी, आजकल ये सारी चीजें रिड्यूस होती चली जा रही हैं। जो कम्युनिकेशन गैप है, इंफॉर्मेशन को जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता आजकल पहुंचने में। आज से 30-40 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, मतलब 25 साल हो गए मोबाइल आए हुए, 25 नहीं, ये आ गया था 95 के आसपास, है ना। तो 30 साल मोबाइल को आए हुए हो चुके हैं, बेसिक मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपके फादर के टाइम पर, आपके ग्रैंडफादर के टाइम पर, ग्रैंडमदर के टाइम पर किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ करता था डिस्टेंस पर, है ना। लेटर लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, वो आप उसमें डालेंगे, पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, फिर वो 8-10 दिन में पहुंचेगा, तब वो मैसेज पहुंच पाता था। फिर उसका रिप्लाई चाहिए तो कितना टाइम लगता था? क्या आज की डेट में आप इन चीजों को यूज करना चाहेंगे? नेवर। Why? Because you will type one message on WhatsApp, immediately you are able to send it to the receiver. Not only the content, you can share images, videos, and audio, anything you can share with the help of mobile, documents, and all these. So in that way, it is able to give, we can say, the wings to the information system, information management. Because of that reason also, we can say the companies are able to maintain their data in a very good quality manner, है ना। उनके अपने डेटाबेस होते हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स आर देयर वेयर दे कैन मैनेज ऑल द डेटा, और उसके लिए आजकल आपको रजिस्टर, बुक्स, इन सब पर आपको खर्चा करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इफ यू हैव सम सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन इजीली होल्ड द डेटा, एनालाइज करके रिजल्ट निकालना आजकल एक मिनटों का काम होगा, बिकॉज ऑफ दीज मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑटोमेशन, द थर्ड पॉइंट। ऑटोमेशन क्या होता है कि आजकल आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, वन वाज कैपिटल इंटेंसिव, द अदर वन वाज लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव क्या होते हैं? जहां पर लेबर काम करती है, वो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होते हैं? जहां पर मशीनें काम करती हैं और लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक अमूल डेयरी का ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं,
आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी आप नाम लीजिए इन कंपनीज के, इन इंडस्ट्रीज के, यू विल फाइंड द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, राइट? कि आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और अगर आपने वहां लोग लगा भी रखे हैं तो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज वेदर द फंक्शनिंग इज ओके और नॉट, दे आर चेकिंग दैट वन ओनली, दे आर नॉट डूइंग एनी मैन हैंडल टास्क एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो सिमिलर रह सकती है, होमोजेनियस रह सकती है, सेम रह सकती है, and whatever you will promise to the customer, you are able to deliver the same thing just because of these automation system of production। तो आपका आज केवल हम प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, टू मेंटेन द सप्लाई चेन, है ना, स्टोरेज जब होती है, आपने देखा है ना कार पार्किंग रोबोटिक्स पे चलती है ना, पूरी नहीं चलती है, कुछ कुछ ऐसी कार पार्किंग है ना, मल्टी फ्लोर कार पार्किंग, जहां पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं कार लेने के लिए, है ना, द मशीन्स आर देयर विच आर डूइंग ऑल द वर्क्स टू पार्क द कार एंड टू place it to the ground when you want to go, then these kind of things are also driven by these automation, and this is also able to save your because the most of the cost, and in long run if we calculate, then in long run you will find that the cost per unit will be minimum if we are applying this automation in our production system। फोर्थ इज डेटा बैक्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एनालिटिक्स। आजकल जो पहले जो हम एम्प्लॉय की बात करते हैं कि उसका बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, हम ये बात करते हैं ना, तो बाइसनेस कैसे कम होगी? जब हम इन टूल्स को यूज करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय एनालिटिक्स, डेटा बैक्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेजरमेंट मीन्स आपके पास प्रॉपर डेटा आपके एम्प्लॉयज का है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है डे टू डे बेसिस पर, वीक वाइज, मंथ वाइज, एनुअली, है ना, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द competitor means the other employees, then we can easily decide whether how much we should give as a performance appraisal, उसका career growth करना है नहीं करना है, because everything is available crystal and clear because of your ERP, because of your softwares which can provide you the relevant data related to your employee। इस बेस पर क्या होता है कि आपके यहाँ जो बाइसनेस की पॉसिबिलिटी है उसको आप पूरी तरह से खत्म कर देते हो, है ना, एम्प्लॉय विल फील मोर इक्वालिटी अमंग themselves, और इस बेस पर जो काम करने वाला बंदा है he will get the promotion and the one who is not able to work they will not get those promotions and incentives, right? तो एक फेयरनेस हम कह सकते हैं कि इंप्रूव होगी, बाइसनेस कम होगी, on that basis also you will be able to retain skilled employees within your organization। Fifth is gathering workforce feedback। For what purpose the workforce feedback is required? That if you have some established system of production, maybe there is a scope of improvement also। तो अगर आप वर्कफोर्स जो वहां काम कर रही है, नंबर ऑफ इयर्स दे हैव स्पेंट ऑन वन पर्टिकुलर वर्क स्टेशन, हु कैन टेल बेटर अबाउट दैट वर्क स्टेशन अपग्रेडेशन? ओनली द वर्कर्स, कि यहाँ पर क्या इंप्रूव किया जाए जिससे कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। फॉर दैट पर्पज वी टेक द फीडबैक फ्रॉम द वर्कर्स, दे कैन ऑल्सो सजेस्ट यू what kind of further product upgradations are required, what kind of further we can say the this what kind of motions we should do so that we can minimize the overall time of production। Those all the things can be done with the help of this workforce feedback। तो ये workforce feedback आपके लिए बहुत important है, because if you will not consider this workforce feedback, what will be the problem? Improve a particular system, you have to depute or you have to hire the third party, which third party will look into your system, they will try to identify the gaps, then they will be able to provide you the solution। लेकिन आप सोचिए कि जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, फर्स्ट दे विल अंडरस्टैंड योर प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, बट इन कंपैरिजन टू दिस सिनेरियो व्हेन यू आर हायरिंग द थर्ड पार्टी, अगर आप वर्कर से ही पूछेंगे जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पर, अगर आप उनसे पूछेंगे दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स, they can tell much better than those third parties। तो आप जो थर्ड पार्टी को हायर करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी आप सेव करेंगे, एंड इफ यू कैन गिव इन रिटर्न टू योर एम्प्लॉय, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू द फीडबैक टू इन रिलेशन विद द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, if you appreciate them, if you can give some incentive to provide some better idea, then they will also feel motivated, है ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी आपकी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, based on that also they will work much more than they were doing earlier।
So these kind of benefits you can also experience if you consider this employee feedback or workforce feedback. The next is improving demand responsiveness. What does it mean? Whenever the order arrives to your location, how well we can supply or how efficiently in minimum time period, how well we can respond to that particular order. तो जो मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की है, आर यू एबल टू सप्लाई इन द सेम नंबर और नॉट? तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग क्वेश्चन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी जो एंटायर सप्लाई चेन है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बनानी पड़ेगी. टाइम डिलेज जिस जिस पर्टिकुलर नोट्स पर है, नोट्स का मतलब मैंने बताया था ना अभी, योर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, देन कंपोनेंट डेवलपर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, देन कस्टमर, इनके बीच में कहाँ लूप होल है, कैसे हम इस ओवरऑल सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको. अमेज़न कंपनी है ना, या फ्लिपकार्ट, या आप ज़ेप्टो ले लीजिए, या आप ये ब्लिंकिट ले लीजिए. आप मैं अमेज़न का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बाकी तो नई कंपनीज़ हैं. अमेज़न आप याद कीजिए आज से 5-7 साल पहले कितना टाइम लेती थी ऑर्डर डिलीवर करने में? दे वर टेकिंग अराउंड 4 डेज़, 5 डेज़, है ना? 6 डेज़, 3 डेज़, दिस वाज़ द टाइम. व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो इन दिल्ली? दे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दे आर एबल टू डिलीवर ऑन नेक्स्ट डे, है ना? नेक्स्ट डे डिलीवरी भी वो कर देते हैं. और आजकल तो आप जानते हैं वो भी आ गया है आजकल कि वो सेम डे डिलीवरी भी नाउ फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग एंड द सिमिलर कंपनीज आर ऑफरिंग. और अब मैं बात करूं ज़ेप्टो की, तो यू नो ऑलरेडी 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, हाउ वेल दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड. और ये ज़ेप्टो की सक्सेस का राज क्या है? दिस इज द डिमांड रेस्पॉन्सिवनेस. अगर यही काम अमेज़न कर रही होती तो शायद ज़ेप्टो जैसी कंपनी, ब्लिंकिट जैसी कंपनी बन ही नहीं पाती, है ना? कभी उनका ओरिजिनेशन भी नहीं होता अगर यही काम, इतनी इफेक्टिव सप्लाई चेन अगर अमेज़न की होती तो. बट यस वी नो, अगेन कंपेयर नहीं है कोई भी, बिकॉज़ यू नो हाउ लिमिटेड आर द प्रोडक्ट व्हिच यू कैन गेट डिलीवर्ड बाय द ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, है ना? एंड हाउ वास्ट इज द product category which is there on the Amazon website. But I'm talking about how quickly you can respond to the demand. As quickly you can respond to the demand, better is the chance to get success in that particular domain. और आप ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और पोर्टल आप जानते ही हैं, इनकी जो सक्सेस का जो सीक्रेट है वो यही है कि आप मिनिमम टाइम पीरियड में आप एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल मैं भी दे रहा हूँ कि आई वाज मीटिंग विद माय फ्रेंड एंड ही वाज आउट स्टेशन थे हम लोग, है ना? हम गए हुए थे कॉलेज के, हम एज ए ग्रुप जो हम स्टूडेंट हैं. तो वहाँ क्या हुआ कि एक जो बंदा था वो फ्लैट की चाबी ले आया, है ना? वो था नोएडा का रहने वाला, गुड़गांव हम आए हुए थे. ठीक है, अब वो फ्लैट की चाबी गुड़गांव पहुंचाना बहुत जरूरी था क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ आई हुई थी. तो उसने क्या किया, होटल बुक किया और उसने वो चाबी ली. आई थिंक 500 और 600 दे हैव चार्ज, और वो चाबी लेके उसने वहां पर दे दी. कितना कन्वीनियंट हो गया उसके लिए. तो दिस इज द व्हाई आई एम सेइंग इट, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज कि वो डिमांड क्या थी वहां पर कि यार चाबी मेरे पास आ गई है और कोई दूसरी चाबी नहीं है, ये मैं कैसे पहुंचाऊं? क्या वो खुद जाता तो उसका जो पूरा टाइम था अपने दोस्तों के साथ, हम लोगों के साथ, वो पूरा उसका वेस्ट हो जाता, है ना? तो उसने वो 500 देके उस टाइम को बचा लिया एंड ही हैज स्पेंड टाइम विद अस, है ना? और उसकी वो जो डिमांड थी वो किसने पूरी कर दी? पोर्टर ने. So this is the real, we can say the reason for the success of these kind of companies, those who are able to find out the gaps. क्या गैप है? ब्लिंकिट भी थी, अमेज़न भी थी, फ्लिपकार्ट भी थी, जो कि ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे. लेकिन किसी ने ये सोचा कि कोई चीज़ अगर मेरी रह गई है तो वो कोई लेके आ सकता है. ये भी एक ऐसा गैप था which was not identified earlier, but this company has identified and now you know the success of this portal, है ना? उसके अपने व्हीकल हैं which are running on the road and they are able to take your things from one place and they can give it to the another place. This is also the facilities provided by the companies. Strengthening customer relationship, that is customer एक्सक्यूज मी relationship सर. is. हाँ बोलिए. सर एक बार ये थोड़ा सा गैदरिंग वर्कफोर्स का फीडबैक का थोड़ा सा समझा देखो दो मैंने क्योंकि आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, है ना? बीच में आप ना बोलें, एक बार यूनिट पूरी हो जाए, आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं लूंगा आपके, है ना? एक ठीक है बार सर. प्लीज मेंटेन दिस ओके सो दैट ये जो बीच में इंटरप्शंस होती है ना, फिर इसकी वजह से बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक ही यूनिट पर अटक के रह जाएंगे, ओके है ना? सर. तो ठीक इन बिटवीन ना पूछ के आप लास्ट में पूछिए हर यूनिट के, नो इशू, आई विल टेक योर क्वेश्चंस. ठीक. The ओके सर. second, this last point is strengthening customer relationship. तो इसके बारे में हम जानते हैं कि CRM, customer relationship management, is the separate segment nowadays in the organization, also separate function in the organization. Those who work upon strengthening the relationship with the customer.
और आजकल आप जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन मेंटेन द इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, है ना, डीपर रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर, है ना। आप जानते हैं कि जब बर्थडे आता है आपका, तो आपके पास कुछ कुछ कंपनी के एडिशनल ऑफर आने लगते हैं, और आपको वो जब स्पेसिफिक ऑफर मिलते हैं तो यू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स बाइंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन आल्सो, है ना। तो इस तरह के ऑफर्स भी आपको आते हैं। आपकी बर्थ एनिवर्सरी, आपके वेडिंग एनिवर्सरी, आपके चाइल्ड का बर्थडे, द कंपनीज आर देयर दोज हु सेंड द विशेस। इसके अलावा वी हैव द पैट्रोनेज रिवॉर्ड आल्सो। व्हाट इज पैट्रोनेज रिवॉर्ड्स? कि आप स्मार्ट बाजार गए, स्मार्ट बाजार में आपने कुछ भी पेमेंट किया, नाउ यू विल गेट सम लॉयल्टी पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम टू बाय समथिंग, those loyalty points can be reimbursed and you will get some cash discount on your next order or next purchase over there. तो इसे क्या है आपका, these are the different ways through which you can maintain the good relationship with the customers. और आपका आजकल आप जानते हैं there are so many, और जो पैट्रोनेज रिवॉर्ड को देने के लिए आजकल कार्ड्स भी बनाए जाते हैं, है ना। जैसे पतंजलि का एग्जांपल ले लीजिए, पतंजलि इज आल्सो कम्पीटिंग इन द मार्केट, है ना, दे आर ट्राइंग टू बी मार्केट लीडर इन सम ऑफ द डोमेन्स। तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है, पतंजलि कार्ड इज देयर, उनका अपना कार्ड है, अगर आप उसको रिचार्ज कराते हैं यू विल गेट 10% और 8% डिस्काउंट इफ यू आर गेटिंग द रिचार्ज ऑफ एन स्पेसिफिक अमाउंट। यानी आपको, आप वैसे जानते हैं जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ रेट टू रेट मिलते हैं, है ना, लेकिन आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप उसको रिचार्ज करा दीजिए, you will get the discount. In that way what they are doing, they are getting connected with the customer, they are maintaining the relationship। जब कार्ड उसके पास बन गया है तो वो कस्टमर हमारा बार बार परचेस करने के लिए आएगा, ठीक है। और जब आपका कार्ड में पैसे ओवर हो जाएंगे, अगेन गेट इट रिचार्ज, यू विल अगेन गेट द डिस्काउंट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन ए रिलेशनशिप विद द कस्टमर थ्रू ए कार्ड, थ्रू पैट्रोनेज रिवॉर्ड्स, थ्रू दोज emails or those messages which are specifically for some segment of the customer because of their birthday, wedding anniversary or the other festivals, and you are reminding them that we are connected. So as much as you can spend money on this, your loyal customer will remain intact with you, and you need not to go for acquiring more number of new customer, because if the large loyal customer base is there, you will be able to save your money in terms of marketing and promotions also, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क फ्रॉम यूनिट नंबर 1। एनी क्वेश्चन? सर मुझे स्लाइड 9 का एक ही चीज पूछना था। हाँ ठीक है, बताइए आपका पॉइंट क्या था? गैदरिंग का वर्क सर। वर्कफोर्स फीडबैक, यही वाला ना? यस सर। ठीक है, मैंने इसमें आपको ये बताया था कि जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और एक पर्टिकुलर प्रोसेस में काम करता हूँ, उसके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए, तो who knows the depth or deepness about that particular project other than me? यानी मैं जिस पर्टिकुलर स्टेप पर या मैं मैन्युफैक्चरिंग, चलो ये ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग पर आ जाते हैं कि आप प्रोडक्शन में आपके 10 वर्क स्टेशन है अलग अलग, जहां पर प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेप फॉलो होते हैं। सम we can say the supervisors or employees are there, those who are working on particular workstation. So if they are working from number of years on that workstation, they knows everything about it, and they knows what are the scope of improvement, so that we can reduce the overall production time on that workstation. So if these kind of feedback can be given by the workforce to the management, and if it is applicable, then you are able to save your time in the production, ठीक है। अब इसकी जगह अगर आप ये काम नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपको फिर उसको टाइम को कम करने के लिए या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बाहर की टीम को हायर करना पड़ेगा। बाहर की टीम को हायर करते हैं, उनको फिर उनका पेमेंट भी करना पड़ेगा, चार्जेस आर देयर, है ना। दे विल आल्सो क्रिएट द टाइम डिलेज, क्योंकि वो पहले आपके प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, and they will do some test and trial, then maybe they can provide some feedback, some idea which can improve your overall productivity. And instead of going to those third parties, if you will focus upon your workforce feedback to improve your overall production system, it will be more feasible, more cost effective for the organization. Is it clear? ओके सर। लाइक सर, जैसे एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस पर्सन जब एज अ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उसी पर्पस के रिगार्डिंग होता है। नहीं, जॉब इंटरव्यू में कहाँ से आ गए आप? देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप जो आपकी वर्कफोर्स है ना,
अगर जो वर्कफोर्स आपकी जहां काम कर रही है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस पर काम कर रही है, उसके बारे में वो सबसे अच्छा जानते हैं, राइट? तो अगर ओके सर। हमें उसके पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें अगर वो हम ऐड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस की अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दिस फीडबैक कैन बी गिवन बाय द वर्कफोर्स ओनली दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप उस फीडबैक को वैल्यू देंगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया मिल जाएंगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओके दिस सर। पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है? एनी ओके अदर सर, पॉइंट फ्रॉम एनीवन? नो सर, थैंक यू सर। ओके, तो हम आते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड यूनिट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जस्ट अ मोमेंट। यस, सेकंड यूनिट आई एम जस्ट शेयरिंग, इट इज अबाउट फैसिलिटी लोकेशन, राइट? इंपॉर्टेंट वन। और इसमें मैंने कहा है आपसे कि फैसिलिटी लोकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आ जाता है ना? अभी हम एक बार पेपर भी देखेंगे कि वहां क्या क्या आया हुआ है। ओके, नाउ आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फाइन। Yes, facilities location. So this is the syllabus of this unit, that globalization of operation, factors affecting locational decision, locational planning method, linkages with supply chain. All these things we are going to cover. So when we talk about this plant location, तो ये एक मैंने random किसी plant की image लगाई हुई है, तो you can see how much is the space requirement for a full-fledged plant of or full-fledged manufacturing plant. प्लांट का मतलब समझते हैं ना? प्लांट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर हम पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, कि प्लांट लोकेशन यानी कहाँ पेड़ लगे हुए हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ग्रीनरी इस फोटो में दिखाई दे रही है ना, तो हम उस ग्रीनरी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, राइट? तो व्हाई दिस डिसीजन इज वेरी क्रूशियल? because when you take this decision will remain effective for number of years, or maybe till your organization sustain your organization location, that particular location will remain same, है ना? ऐसे होता है ना, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा ने जमशेद नगर में, आप जानते हैं कि कितना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो क्या उन्होंने वो लोकेशन जहां से स्टार्ट किया था उसको छोड़ दिया? हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अलावा उन्होंने और कई जगह लोकेशन को उन्होंने सेटअप किया, बट जो लोकेशन उनकी ओरिजिनली थी, वो वैसी की वैसी है ना। दैट्स व्हाई इट इज़ अ की डिसीजन, बिकॉज़ हार्डली यू शिफ्ट फ्रॉम योर लोकेशन इफ यू परचेज इट। तो एक लोकेशन जो डिसीजन आपका लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव रहने वाला है, अगर वही आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपकी आने वाली उससे जो रिलेटेड कॉस्ट होंगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, वेयर हाउसिंग होगी, वो सारी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने कंपटीटर से compete कर ही नहीं पाओगे। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इसलिए यहाँ लिखा भी है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग। व्हाई? बिकॉज दिस डिसीजन of selecting the location will remain effective for n number of years or till the organization sustain। इसलिए हम इसको की डिसीजन बोलते हैं, क्योंकि इसके बेस पर आपकी कई सारी कॉस्ट आपकी इफेक्ट करती है ना, इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ दिस स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑल कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर हेड ऑन बेस्ड ऑन द लोकेशन। हमें लोकेशन की रिक्वायरमेंट कब कब होती है? दीज आर द थ्री सिनेरियोज। एक तो ये होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश एज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नई ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन आपको चाहिए ही चाहिए इफ यू आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स। सेकंड, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, एक नए मार्केट को सप्लाई करने के लिए आपको नई लोकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज इन केस ऑफ ग्लोबल। इन केस ऑफ ग्लोबल मीन्स कि आप अभी तक लोकल लेवल पर एक्टिव थे, आप नेशनल लेवल पर मार्केट प्लेयर थे, नाउ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस टू द अदर कंट्रीज आल्सो, मे बी थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मे बी एज एन एमएनसी और एज ए ग्लोबल कंपनी, you would like to enter into the market of the other countries. In that case, we need the global location to operate our functions in that particular country. ठीक है? So now, in case of location choice for the first time, what are the steps we need to follow? These are the steps. That identify of region,
जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर सपोज मैं साबुन बनाने वाला हूँ ना, मेरी सोप मैन्युफैक्चरिंग की मुझे यूनिट डालनी है, एक नई कंपनी में शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे लिए कौन सा रीजन ज्यादा इफेक्टिव मेरे लिए फीजिबल है। मुझे नॉर्थ इंडिया ट्राई करना चाहिए, सेंट्रल, साउथ, विच रीजन आई हैव टू ट्राई, है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीजन, सपोज मैंने सोचा नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं दिल्ली में मेरी लोकेशन होनी चाहिए। अब दिल्ली जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इन नॉर्थ इंडिया, तो चॉइस ऑफ ए साइट विद इन ए रीजन, कि दिल्ली के किस पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिकली मैं सोच रहा हूँ अपनी साइट को सेटअप करने का। तो मैं ये सोच लेता हूँ दिल्ली में कहाँ जाए, बताओ कहाँ सेटअप करनी चाहिए, है कोई अच्छी लोकेशन फैक्ट्री के लिए? एनीवन कैन नेम ना? There are the areas which are dedicated for the purpose of manufacturing. Any name you can take? सर फरीदाबाद साइड। अरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली, हम फरीदाबाद नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। मायापुरी हाँ, मायापुरी, ओके गुड। हाँ, माने सर तो फिर आप गुड़गांव पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ दिल्ली। ओखला दिल्ली में सर कश्मीरी गेट है, जहाँ से ठीक है, ठीक है, पीछे की हाँ, तरफ अब है। देखो, ठीक है, हाँ, आपने सही बता दिया, एक मायापुरी बताया और एक ओखला बता दिया, है ना। तो हम ओखला हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी लोकेशन वहां होगी, लेकिन ओखला में भी जब हम सोच रहे हैं कि यहाँ लोकेशन हमारी हो सकती है, तो उस केस में हमें फिर उससे रिलेटेड जो डायमेंशन है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। अब वो डायमेंशन क्या है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। दीज आर द डिफरेंट डायमेंशन। ओखला अगर मेरे लिए फीजिबल है, लोकेशन सुटेबल है मेरे लिए, मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस केस में क्या डायमेंशन की जब बात की ना, डायमेंशन एनालिसिस, तो दीज आर द फर्दर डायमेंशन विच आई हैव टू लुक इनटू, आई हैव टू एनालाइज कि आउट ऑफ दीज डायमेंशन विच आर देयर प्रेजेंट, हाउ मेनी ऑफ द डायमेंशंस आर इन फेवर, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर विच आर एडवर्स टू माय डिसीजन। अगर मेजोरिटी होगी फेवरेबल फैक्टर्स की, तो हम उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्लांट लोकेशन सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज जनरल फैक्टर, द अदर वन इज स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट सेंट्रिक हो चाहे वो सर्विस सेंट्रिक हो, है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पेसिफिक फैक्टर की बात करेंगे तो वी कैन डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से कुछ फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ फैक्टर सर्विस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसे फैक्टर होंगे विच विल बी डोमिनेटिंग, यानी हम उन्हें बोलेंगे कि अगर ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में तो हमें उस लोकेशन को सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आर कॉस्ट विल बी हायर। और सेकेंडरी फैक्टर कौन से होंगे? वो फैक्टर कि अगर सेकेंडरी फैक्टर प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, दैट इज वी कॉल ना चेरी ऑन द केक, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सेकेंडरी फैक्टर प्रेजेंट नहीं भी है तो भी हम उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब भी हम उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसका नाम दिया सेकेंडरी फैक्टर। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विस, सम आर डोमिनेटिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर, सेकेंडरी इफ इट इज अवेलेबल वेल एंड गुड, इफ नॉट अवेलेबल वी कैन इग्नोर द फैक्टर्स। वो क्या है हम बाद में जाएंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस द जनरल फैक्टर्स। तो यू कैन सी दैट अनकंट्रोलेबल फैक्टर हम पहले डिस्कस करते हैं कि आपके जो जनरल फैक्टर है विच आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल कौन से होते हैं? द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंट्रोल्ड विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब अनकंट्रोल में कौन से आते हैं? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे किसी एरिया में, अभी मैंने आपने बोला ओखला, मैं ये बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, हम जो फैक्ट्री की अभी हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में, तो मैं उसको लगा देता हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी एरिया में, विश्वविद्यालय जो मेट्रो उसके आसपास। पॉसिबल है फैक्ट्री लगाना? यहाँ चलो उसको छोड़ो, हम यहाँ हडसन लेन ले लेते हैं, पॉसिबल है? तो नहीं है, क्यों? स्पेस ही नहीं है कहीं, स्पेस ही नहीं है कहीं पे। इंडस्ट्रियल नहीं, एरिया स्पेस चलो मिल गया, स्पेस मिल गया, चलो स्पेस है अवेलेबल, फिर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, हाँ, Pollution होता है। रेजिडेंशियल एरिया है, और अगर कॉमर्शियल भी है तो वो सर्विस यूनिट्स के लिए, आप देखते हैं रेस्टोरेंट हैं, कैफेज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर। बट फैक्ट्री यानी कि जो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट है, तो गवर्नमेंट विल नॉट परमिट
the setup of a factory or establishment of a factory on these locations which are either residential or commercial for service center. Getting my point? तो गवर्नमेंट पॉलिसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपको पीस ऑफ लैंड भी मिल जा रहा है, आपके पास कैपेसिटी टू पे भी है उसके लिए, है ना, वैसे ही जानते हैं कितना महंगा एरिया है, बट यू आर रेडी टू पे, बट यू कैन नॉट स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन बिकॉज इट इज नॉट परमिटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी ध्यान रखिए, इसीलिए हम इसको अनकंट्रोलेबल बोलते हैं. सेकंड इज क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट wherever you are going to start with the production, the climatic condition should not become the barrier for your production. जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि एयर कंडीशन के लिए आपने सोचा लद्दाख में फैक्ट्री खोलेंगे, जमीन भी सस्ती मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना बनाया मिल गया, कैन वी ओपन इट? नो. व्हाई? बिकॉज लद्दाख में आप जानते हैं कि कितना वो यहाँ से दूर है, 1200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर के बाद ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है एसीज की, है ना, 700-800 किलोमीटर. तो वहां अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर भी लोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एसी को यहाँ तक लाना, वो आपकी वहां जो आपने कॉस्ट बचाई थी लैंड के प्राइस पर, कहीं ज्यादा वो आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी. तो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अगर क्लाइमेट की वजह से उसकी सेल या डिमांड कम ज्यादा होती है, तो आप जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फीजिबल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग या नहीं है. दिस ऑल्सो यू हैव टू प्लान. थर्ड इज सपोर्टिंग इंडस्ट्री. जैसे हम कार की बात करते हैं, तो कार के लिए जो आपके कंपोनेंट डेवलपर्स हैं, जैसे मैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो यू विल सी दैट द फरीदाबाद इज द मेजर हब, है ना, वेयर दीज कंपोनेंट्स आर गेटिंग डेवलप्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग द कार्स. अगर आप सोचें कि यहाँ कंपोनेंट फरीदाबाद में है, मैं फैक्ट्री जाके लगा लेता हूँ वहाँ क्या कहते हैं जम्मू में लगा लेता हूँ, और सारा कंपोनेंट मैं यहाँ से मंगा लूंगा. और जम्मू क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक है, और क्या कहते हैं, वैसे तो क्लाइमेट का असर ही नहीं पड़ता, और आपका ये क्या कहते हैं जो लैंड की कॉस्ट है वो भी बहुत सस्ती मिल गई है. इज इट feasible? No. Why? Because your again transportation cost, supply chain management will be more difficult when you have a distance from your supporting industries. The next is community attitude, कि आपके जो आसपास लोग हैं जहां फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. Because if this attitude is against your decision, you will not be able to set up your factory over there. Either we can say that irrespective of you have the government policies approval, you have favorable climatic conditions, supporting industries are nearby, but if the local community do not support, you cannot start your businesses, है ना. They will do protest movement, many other things. Like again I give the best example, that is the Tata Singur plant, है ना. You know, one this major tree cutting was taking place in the north, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा था वो, हिमाचल में. तो वहां पर लोगों के दिस प्रोटेस्ट के बाद फिर वहां पर उस काम को रोकना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां से ग्रीनरी को हटाया जाए. जब इस तरह की चीजें होती हैं, देन यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेसेस, योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि व्हेन यू विल सेट अप योर लोकेशन फॉर फैक्ट्री लोकेशन, तो आपके जो कम्युनिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, है ना, रोड, डैम, या आपके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए, क्या वो अवेलेबल है वहां पर? अगर वो है, जैसे वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इज इट अवेलेबल ऑन दैट लोकेशन और नॉट? क्योंकि इनको आप तो नहीं कंट्रोल करते हो. इट इज, इफ इट इज देयर देन इट इज गुड फॉर यू. अगर नहीं है तो आपको फिर एंगेज करने में यू हैव टू स्पेंड अ लॉट, व्हिच मे बी यू कैन नॉट बियर द कॉस्ट फॉर द सेम. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. द नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल फैक्टर. थोड़ा क्विकली करते हैं बिकॉज अभी हमें काफी यूनिट कवर करनी है. प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. मार्केट के नियर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोकेशन आपकी हो मैन्युफैक्चरिंग की, वो मार्केट के पास होनी चाहिए, सो दैट इजीली और प्रॉम्प्टली यू कैन सप्लाई टू द मार्केट विद मिनिमम कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक. सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी अब देखो ये कंट्रोलेबल फैक्टर क्यों है यहाँ पर, सप्लाई ऑफ मटेरियल और कोटिंग इंडस्ट्रीज, है ना, ये सिमिलर पॉइंट है, बट डिफरेंस इज कि सप्लाई ऑफ मटेरियल जहां होगी, ओनर कैन डिसाइड टू सेट अप ए लोकेशन नियर बाय द सप्लाई इज अवेलेबल ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो ये डिसीजन किसका होगा? ओनर का होगा ना. In that basis we can say that it is a controllable factor. Transportation facilities, जैसे सपोज आपकी ये जो क्या नाम है, हमने कार असेंबली की जो हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम एक लेके चल रहे हैं, तो कार असेंबली जब हम करते हैं तो वहां से जो आप जानते हैं कि मेजर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होती है, लॉजिस्टिक होती है, इट इज आइदर बाई रोडवेज और रेलवेज, है ना, रेलवे से भी जाती है. तो क्या ये नियर बाई अवेलेबल है? अगर ये नियर बाई है
तो यू विल बी एबल टू सेव योर कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अगर उनसे दूर आप लोकेशन को सेलेक्ट करोगे तो आपको उतना ही पैसा अपने ट्रांसपोर्टेशन पर देना पड़ेगा। तो ये कंट्रोलेबल क्यों हुई? आपको रेलवे नेटवर्क को नहीं बनाना है, बट यू कैन डिसाइड दैट वी शुड हैव ए लोकेशन नियर बाय टू आर best possible transportation medium which we will use frequently and majorly, which is either roadways or railways or both. इनके नियर बाई होगी ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो हमें दिक्कत आ सकती है। लेबर एंड वेजेस, तो जहां पर इनकी अवेलेबिलिटी हो और फेयर रेट्स हो, लेबर एक्सेसिव नंबर में अवेलेबल हो, इफ यू विल सेट अप योर लोकेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, you will not feel any kind of difficulties in finding out the labor, and you can pay them feasible wages which are as per the government rules. So you should have the location in such a area where this labor availability exists. External economics, it means all these factors which cannot be controlled or controlled by the organization, but it is not within the organization. जैसा हमने बात की अभी इसकी क्या नाम है, सप्लाई ऑफ मटेरियल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनाती ना मटेरियल, है ना? तो ये चाहे लेबर हो, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो, चाहे आपकी प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो, कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर, यू हैव टू चेक, यू हैव टू एनालाइज वेदर योर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इज इन फेवर और नॉट, है ना? कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर, वेदर दे आर इन फेवर और एडवर्स टू योर लोकेशन सिलेक्शन डिसीजन. In combining all these factors together, we will try to figure out whether that location is best decision for setting up the location or. And capital, you know कि how much you can invest on setting up the location. तो कितना पैसा आपके पास है, कितना आप लगा सकते हैं to find out the prime location as per your product manufacturing. अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्राइम लोकेशन क्या होगी? जहां पर सप्लाई ऑफ मटेरियल हो, जहां पर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहां कम्युनिटी एटीट्यूड साथ दे, जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, जहां गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो, तो ऐसी लोकेशन को हम बोलेंगे प्राइम लोकेशन. इफ यू आर एबल टू पे, वेल एंड गुड, और इफ यू आर नॉट एबल टू पे, हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर द मनी, हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द मनी, मे बी बाय वे ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी. आप डेप्ट ले सकते हैं, इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हैं, है ना, जिसके बेस पर आप कैपिटल को एंगेज करके आप ये आपकी कैपिटल के बेसिस पर भी कितना पैसा आप जमीन को एक्वायर करने के लिए लगा सकते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि विच लोकेशन यू आर गोइंग टू एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. Now we come to this, the second part, that is a specific factors. ये देखिए, ये आपके हैं मैन्युफैक्चरिंग के स्पेसिफिक फैक्टर्स. एक बार क्विकली देख लीजिए. फेवरेबल लेबर क्लाइमेट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है ना, मेजरली. प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट के क्लोज होगा तो आपको अपने फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचाने में लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कम खर्चा करना पड़ेगा. क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आपके जो वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या उनके रहने के लिए, शॉपिंग के लिए, डे टू डे हाउस होल्ड वर्क कह सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स के लिए जहां आपकी लोकेशन है, क्या उनका एरिया नियर बाई है या नहीं है. अगर बहुत दूर होगा तो जो क्वालिटी वर्कफोर्स होगी वो आपके यहाँ नहीं आनी चाहेगी. क्वालिटी वर्कफोर्स कहाँ जाना चाहती है कि उसके लिए एक्सेसिबल हो आपकी लोकेशन, इजीली ट्रांसपोर्टेशन मीडियम अवेलेबल हो. तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी. प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, सप्लायर के आप कितना पास है ना, या अदर रिसोर्सेज लाइक वी हैव इलेक्ट्रिसिटी और दीज थिंग्स, है ना, हाउ मच इजीली वी कैन अवेल द फैसिलिटीज विच वी रिक्वायर. देन यूटिलिटीज, टैक्सेस एंड रियल एस्टेट कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट कॉस्ट. वहां पर आपको कुछ टैक्सेशन में या यूटिलिटीज जो सर्विसेज हैं उनमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल पाएगा. जैसे आप जानते हैं ना, SEZ का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वहाँ कई बार आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है. यूटिलिटीज जो आप यूज कर रहे हैं उनके लिए आपको चार्ज नहीं देना होता है. रियल एस्टेट कॉस्ट भी कई बार कंपेरेटिवली कम होती है. तो क्या हम ऐसे एरिया में ओपन कर सकते हैं? दैट यू हैव टू चेक. दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स. The secondary factors is, just go through with it. Room for expansion, नियर बाई क्या और पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है कि हम आज से 5-10 साल बाद सोचें कि हमें अब एक्सपेंड करना है. ठीक है, तो हम आप जानते हैं कि व्हेन वी फाइनलाइज द लोकेशन वी डू नॉट थिंक मच अबाउट दिस पर्टिकुलर, है ना, पॉइंट. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोर और लेस इट इज सेम एवरीवेयर, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. बट यस, इफ इट इज minimum
maybe it is good for you. If it is same, then also it will not impact on your decision. Accessibility to multiple modes of transportation. जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं इसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का ले लेते हैं, है ना, चिप्स और ये बिस्किट्स वगैरह बनते हैं सपोज आपकी फैक्ट्री में, तो क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, है ना? एयरपोर्ट से आपका कितना जाएगा? आपको तो ये देखना है कि आपका मेन जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज द रोडवे, मे बी रेलवे, बिकॉज टू द डिस्टेंट ऑल्सो यू आर सप्लाइंग दीज आइटम्स, तो ये अवेलेबल है, गुड फॉर यू। बट अब इसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए कि वाटर वे भी चाहिए, शिप से जाएगा मेरा प्रोडक्ट, वो अवेलेबल नहीं तो फर्क पड़ेगा। इफ इट इज देयर, गुड, नॉट अवेलेबल, देन ऑल्सो इट विल नॉट इम्पैक्ट योर डिसीजन। कॉस्ट ऑफ शफलिंग पीपल एंड मटेरियल बिटवीन प्लांट्स। आपके दो प्लांट है सपोज, एक दिल्ली ईस्ट में और एक दिल्ली वेस्ट में, है ना? आप वेस्ट में ढूंढ रहे हैं अब, तो अब ये कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? अगर आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़े, मटेरियल को ट्रांसफर करना पड़े, तो कितना इजी रहेगा हमारे लिए, है ना? तो हम इस पर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स फॉर द वर्कफोर्स मीन्स आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो फैक्ट्री है, जिस नेचर की है, उस नेचर की फैक्ट्री नियर बाई कितनी है? अगर वो बहुत ज्यादा होंगी तो दिक्कत क्या होगी? वर्कफोर्स को लेकर प्रॉब्लम आएगी, है ना? लेकिन हम इस पर भी इतना फोकस इसलिए नहीं देते हैं कि जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, तो लेबर वहां पर एक्सेसिव नंबर में अवेलेबल रहती है, तो आपको वो इजीली मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। द नेक्स्ट इज सर्विस related specific factors. So we have dominant factors, impact of location on sale and customer satisfaction. जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, ये गीतांजलि सैलून हो गया, आपका ये बिग बॉस सैलून हो गए, या जावेद हबीब आपने देखे होंगे आउटलेट्स, तो आपने देखे होंगे ना कि लोकेशन कहाँ होती है ना? इट इज, तो इसका लोकेशन, जिस लोकेशन पर ये जो आउटलेट होते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी सेल पर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर होता है। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, यानी कि हाउ इजीली कस्टमर कैन रीच टू योर लोकेशन, है ना? हाउ इजीली ही कैन डिटेक्ट योर लोकेशन, उसको कोई ढूंढने में दिक्कत तो नहीं होती है। लोकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं अगर नियर बाय होंगे, इट में इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन योर सेल, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उनसे आपका जो सर्विस यूनिट है वो आपकी डिस्टेंस पर हो। ठीक है। सेकेंडरी फैक्टर्स आर, रिटेलर ऑल्सो मस्ट कंसिडर द रेजिडेंशियल डेंसिटी, यानी रेजिडेंशियल डेंसिटी, जैसे मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी की, है ना, होटल्स की बात कर रहा हूँ, तो रेजिडेंशियल डेंसिटी का ज्यादा होना क्या हमारे लिए उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकल जो लोग रहते हैं उनको तो क्यों आपके होटल में आना है, मे बी दे विल कम फॉर द रेस्टोरेंट ओनली, कैफेज, ना, but they will not come to accommodate or to get your rooms for spending their time over there because they are the local one. तो रेजिडेंशियल डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा भी है ठीक है, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक फ्लोज, ठीक है, एंड साइट विजिबिलिटी, यानी कि साइट विजिबिलिटी कितनी दूर से उसको कस्टमर देखकर पहचान जाता है, क्या वो साइट ऐसी है, जैसे आपने मॉल देखे होंगे ना, मॉल मॉल में अगर दुकान बाहर की साइड है तो वो कस्टमर को दिख जाएगी, क्या इससे फर्क पड़ता है? There are signage, there are so many ways through which you tell your customer where you locate. So if site visibility is there, good for you. If it is not there, it will not change your decision, not that much. In that way, we have these specific factors. These are locational models. These are 5 type of numerical. तो 5 factor rating, एक बार मैं ये बताऊंगा आपको कि हम कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो 5 न्यूमेरिकल हम क्विकली कर देते हैं एक बार। अब ये सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है जिससे आपको टाइम कम लगे समझने में, ठीक है, और मुझे करने में टाइम ना लगे, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम। दिस इज फर्स्ट, so you can see this is the factor rating method where you will see some factor rating is available here in the question and rating is given with a reference to both the location. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये टेबल नहीं होगी, इन दैट वे यू विल गेट द क्वेश्चन। प्लीज गो थ्रू विद इट, देन आई विल डिस्कस दैट व्हाट वी नीड टू डू। एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से।
सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी शायद ब्रेक पे हैं सर, अभी सारा पढ़ना है अभी। अरे स्लाइड डाउन करनी है मुझे थोड़ी, पढ़ लिया था ना। पूरा पढ़ लिया। So I hope you have तो gone through with the numerical सर where आगे साइलेंट। factor, yes, anything from your anyone? Okay. No, sir. So here in तो सर here in this question you can see that in one column it is given that the locational factor है ना, कि इस लोकेशन को जब हम एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए जब हम एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फाइनल करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर व्हिच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। देन वी हैव फैक्टर रेटिंग, कि इन फैक्टर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी कम इंपॉर्टेंस है। ये एज यू कैन सी फैसिलिटी यूटिलाइजेशन इज हैविंग 8 रेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है मेडिकल फैसिलिटी में। सेकंड कौन सा है, एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप, यानी उस लोकेशन पर जब कोई कस्टमर आएगा, जो सॉरी पेशेंट आएगा, इमरजेंसी केस होगा तो उसको लोकेशन पर पहुंचने में कितना कम टाइम लगेगा, उस केस को हमने दिया है 6, यानी ये सेकंड मेजर फैक्टर है ना, व्हेन यू गो टू सेटअप ए मेडिकल फैसिलिटी। थर्ड इज दिस योर टोटल पेशेंट पर मंथ एंड एम्प्लॉय प्रेफरेंस, इन दैट वे इट इज गिवन। देन यू विल फाइंड रेटिंग इज गिवन फॉर लोकेशन 1 एंड 2 आल्सो, यानी इसका मतलब ये है कि फैसिलिटी यूटिलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो बेस्ट लोकेशन कौन सी है, यूनिट नंबर लोकेशन नंबर 2, क्योंकि इसकी रेटिंग 5 है, जबकि लोकेशन 1 की जो रेटिंग है वो 3 दी हुई है। सिमिलरली जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है जिसकी रेटिंग 6 है, इस पॉइंट पर कौन सा लोकेशन ज्यादा बेटर है, लोकेशन 2, बिकॉज इसकी रेटिंग हाई है। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों जब हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट ऑन सम पॉइंट सम फैक्टर लोकेशन 2 इज बेटर, ऑन सम पॉइंट लोकेशन 1 इज बेटर। नाउ हाउ टू डिसाइड विच लोकेशन इज फिजिबल, है ना, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मेथड दैट इज कॉल्ड फैक्टर रेटिंग मेथड। So first and foremost, what we will do? We will do the multiplication of factor rating with the location 1 rating which is given over there. 8 3s are 24, 5 4s are 20, 6 4s are 24, 3 1s are 3 and 5 5s are 25. This is our first step. ठीक है, second step is multiply factor rating with the location 2 rating also. ठीक है, तो 8 5s are 40, 5 3s are 15, 6 3s are 6 5s are 30, 3 2s are 6 and 5 3s are 15. This is the second step. Third step is to do the summation of sigma FL1, जो आप FL1 यानी कि F का आपने फैक्टर रेटिंग का मल्टीप्लाई लोकेशन 1 से किया, तो इसका सम कर लीजिए, और FL2 यानी आपने जो फैक्टर रेटिंग और लोकेशन 2 का मल्टीप्लाई किया, इसका सम कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सम आ गए। तो हायर द रेटिंग, हायर द क्यूमुलेटिव स्कोर इज योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ लोकेशन, विल बी द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द लोकेशन। तो यहाँ हम दोनों में देखेंगे तो किसका स्कोर हाई आ रहा है, इट लाइज विद द लोकेशन 2, so therefore we will select location 2 as our preferred location for setting up medical facility center। तो इस केस में जहां रेटिंग आपकी ज्यादा आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इसमें किसी को डाउट है कोई? सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सम कर देना है, सम को हमें कंपेयर करके देखना है कि किसका सम ज्यादा आ रहा है। Wherever we have the higher factor rating, that we will select as our preferred location for setting up the medical facility center। यहाँ 2 दिए हुए हैं हमें, लोकेशन 1 2, ये 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो आपको कंपेयर करना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कि 4 लोकेशन है, एफ का मल्टीप्लाई L1 से, एफ का मल्टीप्लाई L2 से, फिर L3 से, फिर L4 से, समेशन चारों का, और फिर हम कंपेयर करेंगे, जिसका स्कोर ज्यादा होगा हम उसको एज प्रेफर्ड लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज
ये इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपके सॉल्व करने के लिए, तो यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑल्सो. दिस इज देयर, इट इज इन योर स्लाइड ऑल्सो विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. Second is weighted factor rating method. Here what we do, here अब मैं क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मेथड के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ थ्योरी पार्ट पर. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल व्हिच इफ इट कम्स रिलेटेड टू द दिस मेथड्स. ठीक है, तो वेटेड फैक्टर रेटिंग जो है, इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो रेटिंग थी पहले जो दी हुई थी ना, वो किससे चेंज हो गई? इट इज चेंज्ड बाय वेट्स. और वेट का रिलेटेड स्कोर दिया हुआ है कि अगर ये फैक्टर है तो उसका स्कोर कितना है. जिसका स्कोर ज्यादा वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, या वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हम ये कहेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपका वो इतना ही आएगा, दिस मच. तो हियर आल्सो यू कैन सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग द हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटी. देयर आर 3 फैक्टर्स. नाउ दोज हु आर द प्राइम वन, फैसिलिटी यूटिलाइजेशन, टोटल पेशेंट किलोमीटर पर मंथ एंड एवरेज टाइम पर इमरजेंसी. इन तीनों को बराबर वेटेज है, लेकिन इन तीनों फैक्टर पर अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो कौन कौन सी लोकेशन बेटर है? देखिए, फर्स्ट फैक्टर पे लोकेशन 2 बेटर है, सेकंड फैक्टर पे लोकेशन 1 बेटर है क्योंकि यहाँ 4 स्कोर है, हाइयर है ना. एवरेज टाइम पर इमरजेंसी पर दोनों ही लोकेशन ओके हैं क्योंकि दोनों का 3-3 है. तो किसी पर लोकेशन 2 अच्छी है, किसी पर लोकेशन 1 अच्छी है, हम कौन सी सेलेक्ट करें? अगेन in the same way as we do in the factor rating, we will do in the weighted factor also. You need to multiply the weights with the scores now. This is the only difference. Same method, same calculation. The only thing is in factor rating method we had factor rating and related ratings were given, and here just yes. So what I'm saying here that in this case you need to multiply in factor rating. हमने रेटिंग दी हुई थी और रिलेटेड रेटिंग से मल्टीप्लाई किया था. इन केस ऑफ वेटेड फैक्टर रेटिंग व्हाट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाई वी आर डूइंग बिटवीन फैक्टर एंड स्कोर्स. तो यहाँ पर हम W इंटू L1 करेंगे और W इंटू L2 करेंगे. सिमिलर टोटल करेंगे हम, देख लीजिए एक बार. 25 3 जा 75 WL1, 25 4 जा 100. इस तरह से आपने WL1 निकाल लिया. देन you have calculated the WL2 also. Do the summation. Wherever higher the weighted score, है ना, higher the summation of weighted score, the location we will select. So here you can see in WL1, sigma WL1 is 315, sigma WL2 is 335. Higher score lies with the location 2. Therefore, we will select location 2 to set up healthcare medical facility in Delhi. Is it clear to everyone? The calculation part? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now moving to the next one, that is the third one, load distance method. तो load distance is the distance formula. आप लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है अपने स्कूल टाइम में. The same formula we need to apply to solve or to find out the best feasible location based on the distance. अब देखिए दोनों जो अभी हम केस हमने पढ़े हैं, यहाँ पर क्या था, क्योंकि रेटिंग थी, यहाँ वेट दिया हुआ था. हायर द स्कोर वी आर प्रेफरिंग फॉर सेलेक्टिंग द लोकेशन. जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक सर्विस यूनिट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां आपके कस्टमर को आने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा. टाइम कम लगना चाहिए, ये हमारी प्रेफरेंस होगी ना, क्योंकि जहां कस्टमर को आने में टाइम कम लगेगा वो उसी लोकेशन पर जाना चाहेगा, चाहे फिर वो आपकी हो या आपके कंपटीटर की हो. इसलिए आप ऐसी लोकेशन चाहते हैं जहां पर कस्टमर को ज्यादा ना ट्रेवल करना पड़े. इस केस में जहां डिस्टेंस कम होगा हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे. ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा डिस्टेंस के केस में. I'm again saying wherever we will find the cumulative score with reference to location is minimum, that location we will select as our preferred choice. तो यहाँ जो दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको डिराइव करके हमने ये है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा. रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस टू अप्लाई इन द क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन A and B इक्वल मॉड्यूलस XA माइनस XB प्लस मॉड्यूलस YA माइनस YB. तो इसमें पता है ना आपको XA और YB क्या होते हैं, XA और XB क्या होते हैं. पहला जो
कोऑर्डिनेट होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या है 10, तो जो पहला नंबर होता है उसको हम x बोलते हैं। ए का जो पहला नंबर है वो हो गया x है, x इज 10 हियर, और एक्स बी क्या हो गया 30। y होता है सेकंड नंबर इन द कोऑर्डिनेट, तो y a हो गया यहाँ पर 15 इन a, एंड y b हो गया 10। इसके बेस पर हम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ यू सी दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम अंडर इन दिस मेथड। तो दिस क्वेश्चन विल कम, क्विकली गो थ्रू। जो लोगों ने पहले ज्वाइन नहीं किया है, पहले नहीं पढ़ा, एक बार वो क्विकली पढ़ लें एक बार कि क्या क्या दिया हुआ है, देन वी विल डिस्कस। तो न्यूमेरिकल जब आपके ये दोनों पूरे हो जाते हैं, रिमेनिंग 2 3, अभी इसके बाद 2 और हैं, देन वी विल टेक ए ब्रेक। ठीक है, देन वी विल अगेन ज्वाइन एट 2 फॉर द रिमेनिंग कवरेज। सर 1 बजे लंच होता है, जब कर दो। हाँ, मैं 1 बजे ही तो बोल रहा हूँ आपसे। हाँ ठीक है, तो 1-1:10 के आसपास हम कर लेंगे ब्रेक, फिर आप 2 बजे के आसपास उठ जाइएगा, 2 सवा 2 जो भी है। ठीक है, देखते हैं चलिए इसको, अब क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार ब्रीफ करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन यू विल सी 7 डिफरेंट सेक्टर्स आर गिवन, और उसके आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स हॉलीवुड मूवी में देखा होगा आपने कि अच्छा लोकेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, आर्मी जा रही है, तो वो कोऑर्डिनेट होती है एग्जैक्ट पॉइंट, है ना, ऑफ द लोकेशन। तो दीज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन ओवर देयर। अब उसमें जो यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी को आप सेटअप कर रहे हैं, उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है ओनर के थ्रू कि आइदर लोकेशन सी और एफ पर हम अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। हम हॉस्पिटल मान लेते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी लिखा हुआ है, हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सी और एफ इन दो में से हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर हम अपना ये हॉस्पिटल को हम सेटअप करें। अब जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है उनके आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उनका एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि इन लोकेशन पर कितने लोग रहते हैं। यानी सेंसस ट्रैक्ट का मतलब आप मान लीजिए सेक्टर, जैसे नोएडा है ना, सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेक्टर हमारे टारगेट पर है। अब इन 7 सेक्टर के लोग हमारे ही हॉस्पिटल में आए तो कौन सी ऐसी लोकेशन होंगी जहां पर हमें हॉस्पिटल को सेटअप करना चाहिए, और ऐसी लोकेशन जहां पर डिस्टेंस आपके पेशेंट को कम से कम ट्रेवल करना पड़े, कंसिडरिंग ऑल 7 सेक्टर्स। ठीक है, तो 2 लोकेशन आइडेंटिफाइड है, हमें अब ये बताना है बेस्ड ऑन द मेथड कि इनमें से कौन सी लोकेशन को हम प्रेफर करेंगे, आइदर सी और एफ। अब इसकी कैलकुलेशन समझिए, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, कि सी का डिस्टेंस जो है, जो पहला पॉइंट है सी, ये वाला देखिए 5.5 एंड 4.5 टेबल में भी लिखा हुआ है। इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे हर सेक्टर से कि कितना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको ढंग से समझ लीजिएगा एक बार। सपोज ये वाला जो पॉइंट है 5.5, इसको मैंने मान लिया एक्स ए। ठीक है, ये एक्स ए है, तो ये क्या हो जाएगा वाई ए। अब इसी पॉइंट की बात हो रही है, और जो इधर फैक्टर है, जैसे ए का ये फैक्टर है 2.5 4.5, तो ये हो गए एक्स बी और वाई बी। आपने क्या करना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मॉड लगा हुआ, याद रखना कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम पॉजिटिव रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो साइन पर ध्यान नहीं देना है। एक्स ए माइनस एक्स बी, 5.5 माइनस 2.5, 3 आएगा डिस्टेंस फ्रॉम सी में। देखिए पहला कॉलम, ये कैलकुलेशन समझ लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा फिर बाकी कैलकुलेशन, है ना। एक्स ए 5.5 माइनस एक्स बी दैट इज 2.5। आप इसमें से किसी को भी एक्स से मान सकते हैं। अगर आपने सपोज ये जो ए फैक्टर है इसको माना होता एक्स ए और वाई ए, तो जो आपका सी फैक्टर है यहाँ पर ये एक्स बी और वाई बी हो जाता है ना। किसी को भी कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 5.5 माइनस 2.5 इट इज 3, वाई ए 4.5 माइनस वाई बी 4.5, ए वाले पॉइंट में भी 4.5 है, तो ये 0 हो गया, इक्वल 3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको पहले कॉलम की? Yes, sir. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनको नहीं समझ में आया सुन लीजिए। देखिए हमने इसको एक्स ए माना है, तो हमें पहले एक्स ए में से एक्स बी को माइनस करना है, विच इज 2.5। 5.5 माइनस 2.5 3, 4.5
minus 4.5 it will be 0. तो समेटिंग बोथ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इट इज 3. अब अगेन एक्स ए 5.5, ये तो सेम रहेगा ना क्योंकि हमें सी से डिस्टेंस निकालना है. 5.5 अब बी को दे दीजिए, 5.5 माइनस 2.5 3 आ गया, एंड 4.5 माइनस 2.5 2 आ जाएगा यहाँ पर. 3 plus 2 adding both of them it is 5. In that way we have done the calculation of distance from C. तो C का डिस्टेंस A से कितना है, C का डिस्टेंस B से कितना है, C से कितना है. अब C से C का डिस्टेंस कितना होगा, 0 ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है C के आगे, देखिए ये वाला. ठीक है, तो इज इट क्लियर टू यू हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम C? Yes, sir. Yes, sir. अब in the same way you have to calculate distance from F also. अब जो हमने यहाँ पर अभी एक्स ए माना था इसको, अब हम इसको एक्स ए नहीं मानेंगे ना, इसका तो काम पूरा हो गया. अब हम इनको एक्स ए और वाई ए मानेंगे, एक्स ए एंड वाई ए, क्योंकि हम अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं एफ से. तो अब एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2.5 कितना आ गया, 4.5, एंड वाई ए इज 2 माइनस 4.5 इट इज 2.5. तो 4.5 प्लस 2.5 इक्वल 7. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. XA minus XB, YA minus YB, दिस इज द फॉर्मूला, वही हम अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, XA की वैल्यू 7 है, 7 माइनस B पर आ रहे हैं हम 2.5 कितना आ गया, 4.5. YA की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2.5 0.5 आ गया. तो ये टोटल कितना हो गया, 4.5, सॉरी 4.5 प्लस 0.5 इट इज 5. तो इन दैट वे वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम F. तो जब F से F का डिस्टेंस निकालोगे ऑब्वियसली इट विल बी 0, यहाँ पे आएगा ना 0. अब नेक्स्ट स्टेप, Yes. नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन रहती है, जैसे L दिया हुआ है ना पॉपुलेशन, ये एक्चुअली थाउजेंड्स में है, तो हमने उनको इक्वलाइज किया हुआ है ना, 1000 हमने लगाया नहीं है. तो यहाँ पर पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 2 है, 5 है, 10 है, 7 है. तो ये जो डिस्टेंस आया निकल के, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल लोग अगर आते हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे. ठीक है, L इंटू सर C हमें ये कर देना है. दो जीरो, हाँ सर ये 0 कैसे आया, मतलब ये नहीं समझ आया. बेटा, आप ये देखो ना, ये जो F पॉइंट है, F का डिस्टेंस जब आप यहाँ पर F से निकालोगे, F से सेम पॉइंट है ना, Yes, sir. 7 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 2 कितना आएगा. ये जो दोनों पॉइंट आए हैं ना C और F, इसी में से तो लिए है ना आपने. देखो C का भी देखो ना, C का जब आप डिस्टेंस C से निकालोगे तो ये भी 0 ही आ रहा है, ये रहा यहाँ पर, ये देखिए, Yes, sir. Yes, sir. ये तो सेम ही होगा, वो सेम सेक्टर की बात हो रही है, तो 0 ही होगा. Okay, sir. Thank ठीक you, है, sir. अब आपने क्या किया, पॉपुलेशन का मल्टीप्लाई करना है जो आपने डिस्टेंस निकाला उससे, पहले C वाले से फिर F वाले से. तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई C से, यानी जो डिस्टेंस फ्रॉम C निकाला था, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25. इन दैट वे यू हैव कैलकुलेटेड दिस, मल्टीप्लाइड दिस to the summation, you will get how much total distance the entire population will cover if they travel towards that particular location. It is 239. ठीक है, and here L into F, यानी नेक्स्ट का डिस्टेंस फ्रॉम F से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक 2 into 7 14, 5 Sir? 5 जा, हाँ बोलिए. सर सर ये L हाँ। into C कैसे वो करा, मतलब L को L क्या है? मैंने यही बताया, यहाँ पर पॉपुलेशन देखो ना, ये पॉपुलेशन जो टेबल में दी हुई है, ये दिया ना पॉपुलेशन, इसका क्या साइन दिया हुआ है, L है ना ये. ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर. हम पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस से, जिससे आपको पता चले कि एंटायर पॉपुलेशन अगर हॉस्पिटल आती है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ओके सर, ठीक है, थैंक L यू. इंटू सी, 2 3 जा 6, ये आपका L इंटू सी इस तरह से आया था. L इंटू F, यानी F वाले से L का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 14, 5 5 जा 25, 10 4 जा 40. In that way we have calculated the total distance covered by the F sector, अगर वो लोकेशन F में है तो.
और सर ये इनका सम कर दीजिए। 239 हाँ 239 वैल्यू कहाँ से आया? ये सम है, सम, या जो आपने ये जो मल्टीप्लाई किए ना, इनको आप ऐड कर देंगे इन सभी को 7 सेक्टर की, इसका सम आएगा 239। सिमिलरली ये जो आपने जो एफ की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको जब आप सम करेंगे इट विल बी 168। करके देख लीजिए। हाँ एक्सक्यूज मी बताइए क्या सर, क्वेश्चन। हमने लास्ट वाले को हाईलाइट क्यों कर रखा है? इसको लास्ट बेटा जो हमारी वैल्यू आई वो टेबल में जो कलर है ना, वो उसका कलरिंग है, उस पर आप मत जाइए, ठीक है। हाईलाइट नहीं किया हुआ है। ओके हाँ वो नॉर्मली लिखा हुआ है, वो लास्ट वाले जी का है। हाँ सर ये 0 कैसे आ रहा है? 6 ये आ गया 6, ये 25, बट ये 0 कहाँ पे 0 0 आ रहा है बेटा? आप देखो ना, देखो ये देखो आप नहीं, हाँ आप ये देखो नहीं, 10 का मल्टीप्लाई एल की वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 10 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे क्या आएगा? ओके सर। 0 ही आएगा ना। सिमिलरली यहाँ Yes. पर आप देखिए, ये जो एफ सेक्टर है, एफ सेक्टर, इसमें भी तो 0 था ना, 20 Yes, sir. इंटू ये वाला 0, इसलिए ये 0 आ रहा है यहाँ Yes, पर, sir. ये जो आ रहा है Yes, यहाँ sir. पर, Yes. ठीक है। Okay, इनको sir. सम कर लीजिए। तो ये माइनस करके हम एब्सोल्यूट नंबर्स ही लेते हैं ना, साइन वगैरह इसमें नहीं हम साइन नहीं आते क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव, इसलिए मॉड लगा हुआ है फॉर्मूले में। ओके ये फॉर्मूला था ना नीचे वाला, हम ये यूज कर रहे हैं ना, मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पर जो समेशन करेंगे आप देखेंगे कि 239 आ रहा है एल इंटू सी, यानी सी सेक्टर का टोटल डिस्टेंस 239 है, और एफ सेक्टर में अगर हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है 168। विच वन वी विल सेलेक्ट बेस्ड ऑन द टोटल डिस्टेंस? सर लोकेशन 2 168। यानी 2 मत लिखो, उसको बोलेंगे लोकेशन एफ, एफ है ना नाम उसका, इसलिए Yes. बिकॉज सिंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस ऑफ एफ इज मिनिमम, therefore this healthcare facility should be established in the sector or census tract F. This will be the answer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो this is the entire question. So just take a break, then remaining 2 questions and further we will cover after the break. ठीक है, so just take the break for 1 hour and we will again meet at 2 p.m. Is it okay? Okay, sir. Bye, Okay. sir. Yes. Join Bye. at 2. Okay, I will be there at 2. Okay,